This year, an Indian star is born. The star is Fiji Indian TV, featuring a live web TV show covering news, current affairs, sports, Bollywood gupshup, Kaunchi Pakaya, Aao Chat Kare, FITV Talent Time, live coverage and more. Join us with your host Param Sivan. Fiji Indian TV, providing entertainment for the Fiji Indians around the globe. Every Sunday from 1 p.m. www.fijiindiantv.com. Be there. और फिजी इंडियन टीवी में आप शामिल हैं परम शिवन के साथ. मैं हूँ परम शिवन. मैं हूँ ना. Yes, and you've been listening to us on radiosana.com as well. www.radiosana.com. It's a wonderful day. It's a wonderful weather out there. और खास तौर पर हमारे सब लोग यहाँ पर glue हुए. There's so many things happening. Someone's phone is buzzing. Buzzing, yeah. Of course it's buzzing. Well, guys, and let's welcome the other chip over the other side. Hello, Doc. How are you? Yeah, Dr Anil कुमार का आप सभी को नमस्कार बोला. और मैं मेलबर्न से वापस आ गया हूँ. आज कुछ सितारे हैं स्टूडियो में. हम कुछ चमकेंगे और दमकेंगे. सितारे चमकेंगे, धमकेंगे, ऐसी बात. चमकाएंगे. Okay. We got some interesting topics. Yes, and of course, let's joining together. Sitting with us is also Mr. Noji over there. Hello, Noji. How are you? Very good, Param. आप सब कैसे हो? हम सब ठीक है. बस आपकी इंतजार में थे. बस as soon as you came. And लोगों को हम आगे बताना चाहते हैं कि this feed is going to radiosana.com, www.radiosana.com, plus on Fiji Indian TV. और हमारा ईमेल एड्रेस और फीमेल एड्रेस और साथ में हॉटमेल एड्रेस क्या है गाइस? Website is www.fijiindiantv.com. Yes. Yep. And the internet email is of course fijiindiantv@hotmail. Yes. .com. Garam, yeah. Welcome, Moji. Namaskaram. Namaskaram, Dr. Ji. Yeah, thank you for joining us again. Second week in a row, Noji ji. Pleasure. और episode 52 है. सभी श्रोता को ये बता दें. 53. That's 2 में मैं गायब था. 52 में आप. लापता. And is welcome back. And those who are glued and watching this, ये feed जो है every Sunday को आप देख सकते हैं live on www. It's live here in studio. As I always say, we are live. I've got a clock here. And like to say, okay, we are live. Tick घड़ी बोल रही है. Very nice. Really past one. Nice घड़ी. बात करें. No, Noji is here and Doc is here and Jeet is here. Well, there's a very important news today. What is happening today? Important news? हाँ, बहुत सारे समाचार हम लोग पास में देने के लिए. आपके पास कोई समाचार है? Cyclones everywhere. आज किसी का जन्मदिन है. Of course, we would like to thank you very much. And, his birthday today. Yep. हम भूले नहीं. Sweet 16. We haven't sent him many messages, but we wanted to keep it a surprise. जन्मदिन मुबारक. Oh, thank you, Doc. Thank you. Yeah, it's nice. Yeah, sweet क्या surprise था जी ये? I think 21. after the event we'll probably have to do something about it. Yes, definitely. Happy birthday. Well, Thank guys, you. how have your week been? आपका सप्ताह कैसा रहा? Yours and Doc, you've been to Melbourne. रिया विजन मीरा में देखेंगे तो मेलबर्न में बहुत ठंड थी और मैंने सुना यहाँ पर बिजली और बादल Oh yeah, we had a very fierce storm. I missed all that. And it was Sydney was cool. वहाँ मुझे एक शख्स से मुलाकात हुई. उसका नाम जॉनी है. वो हमारा एक न्यू व्यूअर है. नमस्ते बोला Johnny. He's a very good dancer. Yes, and we're hoping to get him down here for one of our functions. Johnny, तुम कैसे हैं? 50-50? No, his just name is Johnny. Not 50-50. No. Dancer? Yes. Oh, okay. Sorry. Very good dancer. Oh, okay. Just a dancer. Yes, he is. He doesn't dress like female. No. Oh, okay. Sorry. My apologies. Well, Ron is saying happy birthday to you. Oh, thanks, Ron. Yeah. He's driving and he's watching. I shouldn't be texting as well. But क्या कर रहे भाई? दूर रहिए. And what else has been happening? क्या समाचार इधर मेलबर्न से, Doc? मेलबर्न में शादी बहुत जमकर हुई. And it's good entertainment. थोड़ा लंबा खींच दिया था पंडित जी साहब ने. उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे. Welcome to the topic. माड़ो में वो खाना 11:30 फिर 11:45 कार्रवाई चल रही थी. Because the girl needs to go before 12. That's right. कार्रवाई और मंत्र पढ़ना पड़ता है. वो भी हम बात करेंगे कि 12 बजे से क्यों निकलना चाहिए. आज हमारा खास टॉपिक है और इसीलिए we are all excited and guys have done some research. I have been very busy, so I didn't get any time to do any research. तो इनडायरेक्टली हमने सब्जेक्ट पर चर्चा किया और इंट्रोड्यूस कर दिया. चलो. Yes, we are talking about पंडित जी. हम निंद्रा नहीं कर रहे हैं लेकिन करेंगे थोड़ी सी जनरल डिस्कशन है क्योंकि कुछ लोगों ने ये
have asked us. हाँ, दरख्वास्त किया है कि हम उसको So डिस्कस we'll highlight few issues basically. Goods and bad. You know, I have got a Pandit. I have favorite Pandit तो नहीं मैं कह सकता हूँ क्योंकि I have known him, but you know, he's a jolly fellow. You know, he's good. He's happening. You know, he's a modern and he's happening out there in the society these days. And you know, he's a nice chap as well. So you know, whatever he does, he's probably doing good. But you know, उसके बारे में कुछ बातें करेंगे, सब चर्चा करेंगे. And और सारे इन्फॉर्मेशन हम देने को आपके यहाँ बैठे हैं. And you know, मौसम कैसा है guys? Very cool outside. Yeah. बहुत cool. nice Nice and cool. I think it Humid, might rain there's a bit later on humid. as well. sticky है. Sticky. Side rain, they will get some rain as well. Have you been Noji? परम जी बहुत जैसे आप कहते हैं बहुत बिजी वीक बहुत बिजी था. आज सुबह मैंने सफ़र प्रोग्राम को लिया और उसके बाद में फिर आपका प्रोग्राम जज्बा को सुना. वेरी वेरी नाइस प्रोग्राम. और फिर यू नो आई हैड टू ड्राइव हियर फॉर एन आवर. तो बीन वेरी गुड वीकेंड, वेरी प्रोडक्टिव. और जैसे कि आज जो प्रोग्राम है वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. और जितने व्यूअर्स हैं हम उनको स्वागत कर लेते हैं. और ख़ासकर जैसे कि जितने पुरोहित लोग, जितने पंडित लोग हैं आज वो भी शायद प्रोग्राम को देख रहे हैं. तो हम आपका भी हमारा सादर नमस्कार. पंडित जी आपको नमस्कार. हम जो भी यहाँ देख रहे हैं सभी नमस्कार. काफी दूर 1 hour. 1 hour है फ्रॉम पंडित. बड़ी दूर से आए हैं. प्यार का तोहफा लेकर. रास्ता ऐसे ही कट गया जी. के लिए तोहफा लाए हैं. क्यों नहीं? अब जैसे परम का जो प्रोग्राम है ना जी, उनको अगर सुनने को बैठ जाओ तो टाइम ऐसे ही खसक जाता मस्का क्यों लगा रहे हैं? फास्ट मूविंग. बहुत फैंस है इनके पास ना. और बोरिंग नहीं है. एयर कंडीशन भी है कुछ. और आप लोगों का कैसा था वीक? It wasn't too bad. Busy. Anything special, Param ji? Nothing special. Well, no, nothing much happening. I've been off on Friday, day off था मेरा, तो I was enjoying and catching up. RDO. Yes, so-called government का roster day off होता है. अभी भी चल रहा है ना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. हाँ, जब मैं पहली बार ऑस्ट्रेलिया आया, पहली बार ऑस्ट्रेलिया में 6 महीने गवर्नमेंट का काम किया. मुझको RDO कैलकुलेट करना मैं हरदम रॉन्ग कर देता था. बॉस बोलते काम पे क्यों आई है, आए हो. बॉस फीमेल थी ना, बोले RDO है ना तो क्या 37.5 hours पे काम वर्क करते हैं. फिर यू गेट 1 day off, you accumulate. So ऑस्ट्रेलिया में जो लोग नहीं जानते हैं एक रोस्टेड डे ऑफ होता है. You get paid for the day. मछली मारो, गोल्फ खेलो, क्या भी करो. It's a very good day. मैंने भी न्यू साउथ वेल्स गवर्नमेंट का काम किया. Yes, I was been there done that. Once a month off, you know, you can do so many things. Yes. Yeah, very good. You can catch up with so many things on the हमारे roster day. तो मिर्चा टमाटर में मट्टी चढ़ा के पड़े हरदम. There's actually one way of stopping people taking Money necessary sick पड़े. days, na? Just just to do Well, their we stuff. work. The idea is you work for it. It's anyway. necessary because you know you get tired up as well. Because especially for me, I used to do a lot of on calls in the night. So you know you can be called कभी सुबह को 3 बजे 4 बजे सवेरे. Then you are Yes. stuck for 3-4 hours. तो वो break is very important for us ना. एक चीज और है, वो फिजिकल खाली टायर्डनेस नहीं, मेंटल स्ट्रेस हो जाता है हमारे काम में कई लोगों को. तो हम फिजिकल थकान नहीं महसूस करते, लेकिन मेंटली वी नीड टू बी रेस्ट बिकॉज़ हमारा ब्रेन चलते रहता है काफी लोगों का. अवेयरनेस के दौरान उसके अंतर्गत ये कहते हैं कि यू नीड टू टेक अ ब्रेक. खासतौर पे जो लोग रिटेंड शिफ्ट कर रहे हैं. द न्यू गवर्नमेंट दैट इज गोइंग टू प्रोबब्ली कम, और द ओल्ड गवर्नमेंट व्हिच इज गोइंग टू सस्टेन द पावर इन स्टेट इलेक्शन व्हिच इज कमिंग आई थिंक 28th of जोर तोर से कैंपेनिंग चल रही है. Yes, and उसमें क्या होता है ये देखने लायक बात होगा कि Liberal is in power at the moment, and Labour is not actually in power. So a lot of people are trying to Change. you know, I've seen the काम पे ये लोग क्या कहते हैं, elections वाले क्या बोलते हैं उसको, union वाले लोग they're coming around and saying you know lobby कर रहे हैं कि we should keep this because we will be health department में वो कटिंग्स हो रही है ना जॉब्स का. तो सोच रहा हूँ मैं कि अगर पब्लिक सिस्टम में से निकलूंगा प्राइवेट में जाऊंगा क्या होगी. You know, you used to so relaxed life and काम ही अच्छा है, अच्छे काम भी is good. Quality work is also now coming out of public system. But once you move, you know, after being so many years in a particular system, it becomes It's a hard bit to tough. change it. It is, yeah. Very hard. So you know, this is what we're expecting. No changes coming. Job cuts हो रही है, सब देश में हो रही है ना. सभी देश में, फिजी में, न्यूजीलैंड. Well, it's been a wonderful week, but you know, some unfortunate things are unfolding as we are watching this program. कल परसों ना बहुत खतरनाक तूफान वनुआतू के इर्द गिर्द थी, लेकिन उसके बाद में वहाँ पर पहुंची और बहुत सारे डैमेजेस किए. 60 people have died. कुछ मारे गए हैं. Yes, 200 plus kilometers an hour. Yes. And as I was saying, Param, because it's the first time I heard that there's a cyclone warning for New Zealand, which normally doesn't happen. North East coast, Taranaki रोक से, और फिजी के ऊपर भी इसका कुछ प्रकोप होगा. बिल्कुल फिजी में भी कुछ वर्षा वगैरह हो रही है, और कुछ ज़्यादा वर्षा वैसे कुछ क्या है, जो आई ऑफ द स्टॉर्म जो स्पिन होता है वहाँ पर गेल फोर्स ज़्यादा, फिर उसके पेरिफेरी में as the radius increases
प्रेशर लो होता है और फिर बारिश आती है और कभी काफी गर्मी हो जाती है before it starts. Because they say that the center of the eye of the is not so powerful, no? No, there's nothing there. उसके बाहर से that's where the low pressure और जैसे कि कभी कुछ सब हल्ला हो रही है बीच में एकदम बिल्कुल शांत. Is the cyclone more stronger in the sea or on land? On sea. On sea. This is why because this cyclone that I think it's PAM, isn't it? That's coming. It's coming from northern territory up, between New Guinea and Indonesia and Australia. Yes. Because land में जब आता है तो उसका resistance हो जाता है बहुत ना, so it dies off. Most of the places it dies off on the land. As soon as it touches the sea again, it gets its momentum. और वैसे हम देखते हैं जो तूफान जब आता है कभी-कभी लोग बोलते हैं कि तूफान चल दिया है, लेकिन they are in the eye. That's right. So a lot of people लोग बाहर ही जाने लगते हैं और तूफान बंद हो गया, हवा बंद हो गया, लेकिन फिर उसका जो पीछे वाला भाग है जो आई फिनिशेस द आई छाता उड़ जाएगा, वो मार देगा. इट इज द मोस्ट डेंजरस पार्ट ऑफ द साइक्लोन. जैसे हम फिजी में थे. Yes, Hurricane Lily. I was in Form 4, 72. इत्तेफाक से तूफान रात को आती है. I don't know why. 2 in the morning, 3 in the morning. I think it's because of the trailing forces of the wind. In the daytime sun, so it changes the definitely should be temperature. जरूरी है. और फिजी में वो शटर्स लगाते तार बांधते थे घर के ऊपर. जरूरी है. We used to tie it with the rope. The houses. तार से number 8 wire. Number 8 wire. वो barbed wires होते थे ना. barbed और plain wire भी. को 3 के बेचारे गरीब लोगों स्क्वाटर सेटलमेंट में वो अच्छी तरह से फॉलो नहीं करते बिल्डिंग कोड इन द स्क्वाटर सेटलमेंट्स. 1 पलिया 2 पलिया. बट रिकॉर्ड वाइज ये है कि उसका छत जल्दी नहीं उड़ता है. बड़ा अच्छे घर के उड़ जाते हैं, लेकिन ये जो तार से बांधते हैं अक्सर जकड़ा रहता है. But one thing these things brings us closer. One thing bonding. हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी किसी मजहब से है, चीनी भाई दुश्मन भी है आप तो बोले भैया उसके घर बनवाओ, उसके घर बनवाओ. So it's amazing, I don't know. Brings people together. It does, teaches us something. Community unity. Wooden shutters on the school वगैरह. लेकिन नीला नहीं है, जाओ उसकी हेल्प कर दो ना. Yes. और जैसे वो कैंप होती है ना, दो केंद्र इलाका में जो एक डिवीजन में वहाँ पर लोगों को जगह दिया जाता है जाकर वहाँ पर पनाह लें. तो वहाँ पर सभी जाति के लोग आते हैं साथ में, एक हो जाते हैं, एक फैमिली की तरह हो जाते हैं, क्योंकि वी ट्राइंग टू हेल्प ईच अदर. और वैसे भी जो छोटे जैसे मैं जहाँ पर रहता था तो हमारा घर थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, तो हमारे गाँव के काफ़ी लोग they used to come to our place. और फिर हम एक रूम में सब आगे बैठते थे और ऐसे लगता था एक बड़ा सा माहौल और परवाल है साथ में. हम छोटे थे, हमें तो मजा लगता रहा ना, चा ब्रेड और सबके साथ में फिर रात भर हम जागते थे. याद है. लेकिन इट समटाइम्स हैड बैड कॉन्सिक्वेंसेस. तूफान जो चलता था फिजी में 100 किलोमीटर पे आओ, 180 200. इट वाज वेरी फोर्सफुल. फिजी का जो घर इसी तरह फिजी में जो घर बनाते हैं उसका जो रूफ होता है काफी स्ट्रॉन्ग होता है. स्टड्स वे वेरी स्ट्रॉन्ग. यहाँ के घर तो 2 महीने में रेडी हो जाते हैं ना, कम से, लेकिन फिजी में तो वेरी स्ट्रॉन्ग. तूफान की जब बात होती है, one things come to my mind, one thing, and that is prison. Prison is quite safe, na? Strong and safe. पहले साला लोगों में जब तूफान जो कैदी है वो क्या करते होंगे? How the atmosphere inside must have been, I can't imagine, Solid concrete wall. Concrete wall. Yeah, I mean barbed wire. Can you imagine being a prisoner and then तूफान आवे भैया कहाँ भागे ये लोग? को नहीं लगेगा ना, safest place. They got individual cells which is basically concrete and steel. वैसे फिजी में देखा जाए there are so many stories, very tragic stories. और कई लोग मारे गए हैं, जैसे कि I know my friends dead. वो किसी केंद्र में था और वो जाकर किसी बच्चे को बचाना चाहता था बिकॉज और एरियाज में वॉल्स गिर रहे थे, तो ही वाज क्रोलिंग, तो फिर जो ओल था उसके ऊपर गिर गया. वेरी ट्रेजिक. और कभी लोग दे ड्राउन और इलेक्ट्रिक्यूट हो जाते पावर सप्लाई पे. इसीलिए बताया जाता है कि पावर लाइन नीचे मत छुओ and don't get into rushing water. Well, that is all Fast about flowing. Tufan. We have all had experiences about Tufan and बातें कर रहे हैं हम. आप glued है Fiji Indian TV के जो लाइव स्ट्रीम हम एवरी संडे को देख रहे हैं, और साथ में रेडियो अफसाना में जो लोग सुन रहे हैं आपसे हम गुजारिश करेंगे कोई भी चैटिंग करना चाहते हैं, हेड ऑन टू द चैट रूम ऑफ www.radioafsana.com. वहाँ पर भर्ती हो सकते हैं. भर्ती हो जाओ. And today we are talking about Pandits, and we're going to talk more. Let's take a short break, guys, and
यस, फिजी इंडियन टीवी का प्रोग्राम आप देख रहे हैं और जो गाने हम यहाँ से बजाते हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है यूट्यूब में, इसीलिए हम उसको आप तक जो लोग प्रोग्राम को देख रहे हैं यूट्यूब में वो गाने आप नहीं, तो लाइव स्ट्रीम आपको देखना पड़ेगा वो सब गाने सुनने के लिए। फिलहाल जब बातचीत जो हमारी वो है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट साइक्लोन्स एंड वी शुड, और कुछ समाचार साइक्लोन के बारे में। इट्स एक्चुअली हेडिंग अवे ना, इट्स गोइंग अवे, हां, बैक दूर जा रहा है। ठीक है। और देखा गया कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि पहली बार न्यूजीलैंड पर एक प्रकोप हुआ है और ये हमेशा होता ही नहीं। उसका पाथ क्योंकि वो साउथ और ईस्ट के बगल गया है ना। बिल्कुल। वैसे जो तूफान क्वींसलैंड में भी आया है, उसका जो यूजुअली जो जितना तूफान आता है उसका उसका जो विंड प्रेशर है वो सेंट्रल क्वींसलैंड ले आता है यूजुअली, रॉकहैम्पटन ले। लेकिन इस बार उसका जो प्रकोप था वो अप टू बंडरबेग था। बिल्कुल। सो ये देखने की बात है कि इज वेरी क्लोज, इज कमिंग टू ब्रिस्बेन साउथ। तो यूजुअली सेंट्रल क्वींसलैंड से नीचे आपका हवा बहुत मर जाता है। लेकिन इसका जो फोर्स था वो अप टू बंडरबेग व्हिच इज अबाउट 4 आवर्स टुवर्ड्स ब्रिस्बेन। बिल्कुल। और देखा जाए तो जो आई थिंक लास्ट साइक्लोन जो आया था, आई मीन इट डिड अफेक्ट क्वींसलैंड अ बिट, मेन क्वींसलैंड सिटी में आया ना, इट डिड अफेक्ट मेन क्वींसलैंड एज फार एज गोल्ड कोस्ट। ये तूफान जो याका था, बिल्कुल, ये फिजी में इसका एक सोचने वाली बात है। ये तूफान जो था वो ऑस्ट्रेलिया में जितना तूफान आता है वो एक मेल और फीमेल लड़का लड़की के नाम होते हैं। पहला तूफान था ऑस्ट्रेलिया में जो एक हाडू टिम्बा का था और इसका नाम फिजी में रखा गया था याका। और इट वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हरिकेन और साइक्लोन इन ऑस्ट्रेलिया। फिजी जो लोग जानते नहीं, याका एक बहुत अच्छा ग्रेन का टिम्बा होता है, फर्नीचर फ्लोरिंग बनते हैं। यस, वो टेमाइट उनको नहीं खा पाते, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। एनीवे आप बोल रहे थे ना, तो ठीक है ना, मैंने कहा था कि ये तूफान इसका नाम याका था, तो लोग बोलते थे ना याका के इट मींस वेरी स्ट्रॉन्ग। और याका के खटिया वाले लॉट ऑफ डैमेजेस इन कैन्स, इट बॉट लॉट ऑफ डैमेजेस इन कैन्स। याका के खटिया कर तो टूटे नहीं जल्दी ना, जरूर किरवा नहीं खाई, एंड इट्स गॉट अ गुड ग्रेन। Yeah, it's expensive actually. Very expensive. लोग अक्सर फिजी में किचन वगैरह में लगाते हैं, अच्छा ग्रेन होता है उसका। दोंगो जो ने दोंगो तो तिड़ी है, उसको नॉर्मली फायरवुड है, क्रेमेटेरियम चित्ता में फायरवुड। एक दिया था टिम्बर है वेसी, दो टिम्बर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपेंसिव। mahogany is also चाहे कोई टिम्बर जो तूफान आती है तो इस टिम्बर का कोई बात नहीं होता, याका हो या बुढ़ा ले जाएगा, सब बुढ़ा के ले जाए, पेड़ नीचे होता है। But anyway, those are the things that is happening around the globe, and our condolences and prayers. We ask people to include in their prayers जितने भी those people have actually died. कुछ बच्चे अनाथ हो चुके होंगे मेरे हिसाब से। Very sad, yes. So condolences, and include them in your prayers. But those are the things that are happening around the globe. लेकिन हमारी जो ग्लोब है, हमारे ग्लोब जो छोटी सी ग्लोब है, फिजी इंडियंस की ग्लोब है, वो छोटी है एंड उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें से एक तो ये है आज का जो हमारा अहम मुद्दा ये है कि हम बातें कर रहे हैं आज पंडितों के बारे में। पंडित्स, लॉट ऑफ पंडित्स, इज यंग पंडित्स, इज ओल्ड पंडित्स, इज गुड पंडित्स, इज नॉट सो गुड पंडित्स, सम स्माइली फेसेस दिखते हैं आप, या तो फिर मॉडर्न पंडित्स है, उनके बारे में कुछ बातें करते हैं। किसी ने आशा की कि भाई इसके बारे में कुछ बात की जाए, तो आई लीव यू टू द फोरम गाइस, क्योंकि बाहर से मैं तीर मारूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे साथ हैं। परम जी, हम पहले जो डेफिनेशन कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं। नॉर्मली 2 किस्म के पंडित होते हैं, वो हम पोंगा पंडित की बात नहीं करते। एक होते हैं जो किसी भी फील्ड में माहिर होते हैं, जैसे कि म्यूजिक में, जैसे पंडित वेरी एक्सपर्ट, बहुत ही माहिर एंड दे वेरी वेरी हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, जैसे पंडित 84 या पंडित रविशंकर। और तभी से बोले पंडित राइट है जी, पंडित सेट है। हाँ, वो तो निकनेम है, बट ये लोग जो जैसे इंडिया और दूसरे देश में जो बहुत ही माहिर है, वेरी हाई लेवल परफॉर्मेंस, जैसे वो जो फ्लूट प्लेयर पंडित 84, हमारे यहाँ लोकल पंडित चुमन रामचंद्र सुमन है और पंडित रविशंकर, तो वो पंडित के बारे में हम नहीं बात करते, हम ये रिलीजियस पंडित के बारे, फेथ के बारे में, धर्म, ठीक है। बिल्कुल। I mean, पंडित का अगर डिफाइन किया जाए, जैसे कि आपने डिफाइन किया है, पंडित इज क्लासिफाइड एज द गाय विद नॉलेज, अ लॉट ऑफ नॉलेज ऑन वन पर्टिकुलर फील्ड। यस, उसको पंडित बोलते हैं। अगर इंग्लिश डिक्शनरी में आप देखेंगे तो उसका मतलब ये है।
जो पंडित के विषय हम बात करेंगे, रियली में ये जो पंडित होता है इज फुल ऑफ ज्ञान, हाई लेवल नॉलेज। मान लो जैसे मॉडर्न हम पीएचडी बोलते, किसी ने डॉक्टरेट किया है एक ही फील्ड में, बिल्कुल, तो पंडित को डॉक्टरेट करना जरूरी नहीं है, बट दैट्स एनीवे, आगे बढ़ते हैं। एंड पंडित कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 डिफरेंट फील्ड्स एज वेल। जो पंडित होता है ना, जैसे कि इज नॉलेजेबल, बेसिकली इज गॉट लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट रिलीजन, दैट्स व्हाई वी कॉल हिम अ पंडित। बट पंडित का भी 2 किस्म से होता है ना। पहला जो इसका जो हेड होता है वो ब्राह्मण होता है। Naturally, they have to be Brahman. Brahman. Can you be a pandit and not be a Brahman? Well, controversial है. Controversial. अच्छा, anyway. This is where we got to shed some light. Why? अच्छा, आगे बढ़ते हैं. What is the difference between a pandit and a Brahman? ठीक है. Because as we said, a pandit is a guy with lot of knowledge. Basically, a pandit could be a music pandit, could be a computer pandit, because he is specialized in one narrow particular field. Yes. Okay, that's how pandit is classified. तो इसके बारे में कुछ बातें करेंगे बाद में। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो इसके विषय में कुछ हम टिप्पणी करेंगे और कुछ विचार डालेंगे इसमें। और जो ब्राह्मण होता है, they are the top basically ना hierarchy में, they are the top and they are the people responsible for the puja and all the other stuff. वो पैदाइशी है ना, you can't become a Brahmin, you have to be born a Brahmin. So my history on this Mahabharata is not very good, so I'll ask you guys, जैसे कि मैंने बाहर से पूछता हूँ, तो why ब्राह्मण होना चाहिए पंडित करने के लिए? कहीं वेद में कहीं लिखा है, कहीं बुक्स में कहीं लिखा हुआ है कि they have to be a Brahmin to be a pandit? मैं कुछ इसके बारे में कहता हूँ। जैसे किसी को अगर ब्राह्मण बनना है, ब्राह्मण का मतलब ये मेरा ज्ञान है, I might be wrong, people can have other views on it. ब्राह्मण, अगर किसी को ब्राह्मण बनना है या ब्राह्मण या पंडित या अगर पूजा कराना है या रिचुअल्स को कराना है किसी के घर पर, तो जो ब्राह्मण होता है उनका जो नॉलेज है, अब जैसे मिडिवल टाइम में जो इंडिया में जब ब्राह्मण जो बच्चे थे उनको माँ बाप से अलग कर दिया जाता था। क्यों कर दिया जाता था? क्योंकि अकॉर्डिंग टू उनका जो नेचर है, दे विल फॉल इनटू दैट कास्ट। जैसे एक व्यक्ति, एक बच्चा है, अगर उसका जो नेचुरली ही इज गिफ्टेड एज अ वॉरियर, तो वो क्षत्रिय बनेगा। सही। ऐसे नहीं है कि अगर आप पंडित के घर में, ब्राह्मण के घर में पैदा हुए तो आप ब्राह्मण हो जाओगे। क्योंकि अगर आपका व्यक्तिगत जो आपका नेचर है अगर पंडित के एक ब्राह्मण की तरह नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि आप ब्राह्मण के घर में बोर्न होकर और कुछ भी कर सकते हो फिर भी अपने आप को पंडित कहलाते थे। तो वो टाइम इंडिया में ऐसा होता था, बच्चों को अलग किया जाता था। तो व्हाट इज हैपन, वो लड़का को परिश्रम करके बड़ा करते तो उसका देखा जाता था उसका जो कला है वो किसमें उसका ज्ञान ज़्यादा है। अगर ही वॉज अ गुड ट्रेड्स पर्सन, तो उसको जो ट्रेड्स पर्सन उसके क्या बोलते हैं दो कास्ट में, आ जाएगा, अभी मेंटल ब्लॉक है। इट्स कास्ट में क्या, ये जो वॉरियर्स होते हैं ना, क्षत्रिय होते हैं, वैश्य होते हैं। आई थिंक द वैश्यस आर द वंस हु द ट्रेडर्स, या। तो इफ यू आर गुड इन दैट, दे विल पुट यू ऑन दैट। ब्राह्मण का लड़का घर से लाया गया और ब्राह्मण का काम नहीं कर पाता, वो ब्राह्मण नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि एक पर्सन को अगर इसी तरह से गलत ये है इंडिया में, जैसे हम लोग एक किसी बच्चा अगर पैदा होता है ब्राह्मण फैमिली में तो हम उनको ब्राह्मण बोलते हैं, ये एक्चुअली में गलत है। कास्ट सिस्टम इज नॉट लाइक दैट। अगर वैदिक नॉलेज को फॉलो करो, वैदिक नॉलेज इज टू टीच कि एक पर्सन का जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको लेकर वो व्यक्ति को कास्ट सिस्टम दिया जाता था पहले। इसको इसका मतलब चेंज कर दिया गया है, वो गलत है। तो पंडित वो हो सकता है, वो ज्ञानी, वो जो अपना नॉलेज जाकर लेता है दूसरा पंडित से या कोई स्कॉलर से, और वो पंडित का काम कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन वो कहीं भी पैदा हुआ, किसी भी घर पर पैदा हुआ, इट डजंट रियली मैटर। नाइस। फिजी में जिसे बोलते थे कि जो शर्मा होते या एक ग्रुप में वही पंडित बन सकते, तो दिस इज एन एवोल्यूशन दैट मींस एग्जैक्टली इट इज। Over the years क्या हुआ ना, thanks for that. Gurmit, when people came from India, they brought with them the religion, their ways of things. तो क्या होता है, I agree with Noji, क्या होता है कि ये जो ब्राह्मण होता है ना, what happens with a Brahman is a totally different type of group basically. क्या होता है, to become a Brahman he has to, जैसे इसने बताया ना, he has to go and study with a group of Brahmans basically. तो उसमें क्या होता है,
he doesn't get married, he doesn't have a family, he is fully devoted in worship. Dietary restrictions heavy. जरूर और पंडित के पहले होता था। जो पहले होता था क्योंकि जो घरेलू संबंध है एक ब्राह्मण से नहीं संभाला जाता है, because you cannot mix your domestic things with your puja. That's a high level of detachment जो religion is. You have to detach. When the Brahmins were there, You have they to were just dedicate your spiritual life. And detach from material things. Material things, बिल्कुल. Makes sense because मैं ये भी सोचता हूँ कि पंडित लोग को देखता हूँ कि this guy is married. तो अब sense it does make sense now कि ये क्यों होना चाहिए कि is it valid ना, ये सब चीज तो आम आदमी मेरे हिसाब से नहीं जानता। वैसे होता है कुछ लोग जो आश्रम होता है ना, जो विवाहित जीवन होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विवाहित जीवन के बाद में वो जीवन को लेते हैं और फिर देयर इज नो रिलेशनशिप ना, फिर वहाँ से। लेकिन आजकल तो हम देखते हैं कि पंडित टाइम चेंज हो रहा है और पंडित लोग भी मैरिड है, दे हैव अ फैमिली व्हिच इज नॉट बैड। अगर वो अपना काम को अच्छा से करें, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। बट जैसे जी आप बताए जीत, पहले ऐसे होता था, स्पिरिचुअलिटी वाज दैट थिंग। अगर एक मुद्दा हम लाए हैं क्रिश्चियनिटी की ओर, रोमन कैथोलिसिज्म में जो ब्रदर्स या प्रीस्ट थे वो दे वर बैचलर्स, दे वर बट अब चेंज हो रहा है। ऑफ कोर्स changing now. Changing with time. Everything is moving according सो to time. सिमिलरली हमारे जो हिंदुस्तानी जो धर्म और कल्चर है, यू कैन कंपेयर विद रोमन कैथोलिक के वहाँ पर भी जो पादरी प्रीस्ट होते थे, दे वर सपोज्ड टू बी सिंगल। और फिर वैसे जो आश्रम होता है, जो 4 आश्रम होता है ना, उनको स्टेजेस ऑफ लाइफ है, जो उनको निभाना जरूरी है एक सभी इंसान का। और आई थिंक वी शुड गो टू द सेम पाथ। फिर ऐसे से स्पिरिचुअलिटी बढ़ता है, एंड में देन पीपल त्याग ले लेते हैं मैरिड लाइफ से एंड दे बिकम सिंगल। और अगर सिंगल नहीं भी हो तो दे स्पेंड एक्चुअली मोर टाइम इन स्पिरिचुअलिटी। तो हम देखते हैं हमारे समाज में भी जो लोग बुजुर्ग लोग हैं, वो जब अपने वो काम में पहुंचते, जब लड़कन बड़े हो जाते हैं, परोसन हो जाता है, सबका शादी हो जाता है, रिटायरिंग हो जाता है, तो उनका जो ध्यान है, जो मन है, वो पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि आखिरी तो हमारा जो पर्पस है दुनिया में आने के वही है ना। Is that why everybody that you see is past 40s become holy all of a sudden? Not 40s, maybe later 50s 60s. I don't know, this is my judgment. I think it's a perception कि अब दुनिया को छोड़ने की तैयारी हो रही है। नहीं, वास्तव में डिटैचमेंट प्रैक्टिस करने लगते हैं, दे स्टार्ट बिकमिंग मोर एल्ट्रुइस्टिक, मतलब कि धर्म कर्म का काम करने लगते हैं। और शायद कुछ लोग वेजिटेरियन भी हो जाते हैं, रिलेटेड टू हेल्थ। इट्स अ रियलाइजेशन इज वो, क्योंकि हम जब दुनिया में इतना व्यस्त हो जाते हैं तो अपने आप के बारे में भूला जाते हैं, मोह माया में जो है उसको भूला जाते हैं, मटेरियलिज्म ना। तो जैसे जैसे हम उधर नजदीक जाने लगते हैं, जो हमारा साथी है, जो असली साथी, आपका जो असली साथी है वो आपका मृत्यु है। मृत्यु को गट्टे में बांध के घूमो, क्योंकि वो कभी आ जाएगा। एनलाइटमेंट मतलब लोग को एनलाइटन हो जाते हैं। कुछ लोगों को एनलाइटन 80s 40s में हो जाते हैं, कुछ लोगों को कभी नहीं होती है मरते दम तक। Sadly. Wonderful thought. I'm actually learning a lot. And I thought कि काफी लोग ये शायद सोच रहे हैं कि these guys are going to bombard पंडित के बारे में ना आप। No, we sharing and discussion forum है। और देखो ये हमारा जो बुद्धिज्म है, गौतम सिद्धार्थ बुद्ध, वो बोधि पेड़ के नीचे बैठ कर क्या कर रहा था? वो जब करता था कि he got enlightened at a very young age, I think 20s में। हाँ, and he knew that we have to detach, and he was just doing बस भगवान के काम में लगते थे, प्रचार करते थे। He came from a very rich Hindu background. Hindu background, and his dad was a Raja. He wanted his dad wanted him to be the Raja next. But his mind was not there. He says, "Look, no, I want to go and see. I want to devote my time to the creator of this universe." So that's where he actually और उसको विजन मिला था। Yeah. He could see, उसको एक वो होता जैसे कि बोलते विजन आया था कि he could see human nature कि when people get old कैसे लगते हैं, they become weak, अंधे हो जाते हैं, काने हो जाते हैं। If you read his history, and so he got enlightened, and he actually left his family. I guess he was married. Everything was there, and he could see the suffering, and he said, "Look, I want to भगवान के काम करेगा, help people, धर्म के काम करेंगे, क्योंकि हमको एक दिन सभी को बूढ़े होकर वीक हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, और कुछ नहीं काम देगा। Just you and yourself और आपका भगवान। जी जरूर। ऐसे बहुत ही और भी लोग हैं जैसे गौतम बुद्ध की तरह। हमारे पास सबके पास तेजस्वी है,
लेकिन अगर जैसे गौतम बुद्ध ने किया, अगर हम भी करने लगे छोटा पर से काम का सब छोड़ तो हमें भी ऐसे ही होगा. वी कैन ऑल गेट एनलाइटेंड. हमारे पास उतना शक्ति है, लेकिन ये शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा. राइट, जो एनर्जी है उसको राइट जगह पर ले जाना पड़ेगा. ये बहुत ज़रूरी है. कलयुग में हमारा ये मटेरियलिज्म खिंचान आ जाता है कि थोड़ा ये और कर लेंगे, थोड़ा एक और म्यूजिक एल्बम निकाल देंगे, थोड़ा और फेमस हो जाएंगे ना. इट्स अ ह्यूमन पार्ट ऑफ अस. इफ यू डोंट डू दैट देन वी नॉट ह्यूमन. Well, it's Balance. wonderful. It's wonderful. Well, so there was a bit of introduction. आप कुछ बचाएं थोड़ा सा. ना ये तो अभी थोड़ा गंभीर में जाएंगे. This is ये what warm up था. Entree. This is the difference between a Brahman and a Pandit. खाली definitions कर रहे हैं. Definitions we're doing. We segregating the two groups. What is a Brahman? What is a true Brahman? And what is a Pandit? तो मोजी जी आपने बोला जैसे they had to be single celibacy बोलते celibate. हाँ, ज़रूर. They can't have procreate, can't have children, ज़रूर. and they didn't have a partner, right? At that Completely time. At that dedicated. time. This At is the build up to modernism. Modernism. Sure. Yeah. वो तो the 10वीं Brahmans have सदी से become- पहले था ना मेरे हिसाब से. क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत हो रहे. हमारे घर में भी एक फंक्शन हुआ था और एक पंडित जी बहुत वेल नोन है, उसका फैमिली में एक बर्थडे हुआ था. तो ही थोड़ा अपसेट कि भाई देखो मैं कुछ कर रहा हूँ, अब मेरा फ़ोन कॉल आ गया है, यूट्यूब टेक्स्ट मैसेज में सब आ गया. एंड ही हैड टू अपनी कार्रवाई में थोड़ा बाधा पहुंच गया था. एंड देन ही हैड टू बेसिकली ही वाज अ बिट अनोइड कि ही हैड टू स्टॉप एंड देन आंसर क्योंकि उसके बेटी के बर्थडे था. So that is a form of distraction. Should have turned the phone off, but anyway. It was your phone. Okay, you're the culprit. No, I mean the Panditji. Oh, अच्छा. well, guys, look, there's some good पंडित हैं. some जैसे कि मैंने पहले फरमाया कि आजकल के जो पंडित होते हैं उनकी अलग अलग तरीका होता है. तो उनके बारे में कुछ हम बातें करें. छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा हवा पानी खा के हम आते हैं और फिर और भी बातें हम करेंगे पंडितों के बारे में. चाय पानी करेंगे. हाँ. एक शख्सियत से मुलाकात मुझे हुई आज जब सुबह मैंने यहाँ स्टूडियो आया. मुलाकात इंटरनेट के जरिए से हुई और क्योंकि मैं यूट्यूब में गया और उसका वीडियो देखा, मुझे बहुत ही पसंद है. नाम उसको मैंने पहले सुना है, मास्टर सलीम का नाम आपने सुना? आपने सुना है? Master Slim. मैंने उसका नाम सुना 2 साल पहले. I think he came to do a concert here. I didn't go to the concert, but I've heard of the name Master But I Salim. haven't actually heard the name. Seriously, I haven't. I know. I've heard the name Master It's a wonderful character. I haven't seen the performance, but मैं नाम सुना. Amazing जुगलबंदी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. जो लोग YouTube में नहीं देख रहे हैं, you have to watch it live. Originally from? Originally from, I think it's from Punjab. Okay. I didn't do a history checkup on him though, but a video that I came across was amazing. It's amazing खास तौर पर जो लोग म्यूजिक पे दिलचस्पी रखते हैं. And I think we should learn all this thing, man. Come on. चलो देखते हैं. हम लोग इतने दिन कहाँ. जी हाँ, आप निदासों की मरम्मत करने के लिए यदि आप सिडनी में रह रहे तो डॉक्टर अनिल को संपर्क कीजिए. स्क्रीन पर नंबर है. और यदि आप सफर कर रहे हैं, सिडनी आ रहे घूमने के लिए, निरीक्षण कराइए, बिल्कुल सस्ते दामों में डॉक्टर अनिल को संपर्क करें. बिल्कुल. Thank you for that plug. अच्छा, इनवॉइस बनने भेज देगा. Just for the record, हमारा ऑस्ट्रेलिया में अभी भी 25 years हो गया है प्राइवेट प्रैक्टिस में. Wonderful, doctor. That's very good. And I've known you for such a long time. And I've never had a bad. You've known it for 26 years, ना? हाँ. No. 25 years private practice और वैसे 6 months RDO लेते थे ना. Public system में था ना ये. आप भी ये पंडित हो? छोटे मोटे पंडित? अभी नहीं. पंडित नहीं है, डॉक्टर के पंडित, डेंटिस्ट ना. PhD कर लेंगे तब. अच्छा, तब बोलेंगे. तब हाँ, वो टाइटल होना चाहिए जैसे कि मोजी जी बोला था, वो सब डिटैचमेंट करना पड़ता. यू हैव टू गेट अ स्पेशलाइज्ड एरिया. वैसे मास्टर्स मैंने 1986 में कर लिया था, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया आते हैं, यू लूज 3 years. एनीवन हु माइग्रेट्स यू लूज एटलीस्ट 2 or 3 years. एम आई राइट? गेनिंग एंड कैचिंग अप. द यंगर यू आर द बेटर. तो फिर बच्चों के फिर परवरिश करते हैं.
बच्चों की परवरिश करने के बाद, बिजनेस में मेल मिलाप होने के बाद आप थोड़ा सा फिसल गए, थोड़ा सा कम्युनिटी और एंटरटेनमेंट में आ गए हैं, पूजा पाठ की ओर भी अब बढ़ रहे हैं, और आज हम बातें कर रहे हैं पूजा पाठ पंडित। चलो है आगे लगे हाथ बढ़ते हैं। This is the age I suppose we start realizing भाई हम लोगों को पूजा पाठ कुर्बानी है या अलग अलग whatever संस्कृति आप फॉलो करते हैं। जी हाँ, मुझको एक्चुअली बताया गया था, बोले भाई आप स्टेज में गाते होते, थोड़ा संगीत में आओ, तो मैं गया तबला सीखा, फिर अभी थोड़ा मोड़ा हारमोनियम सीख रहे हैं। कभी कभी बैठकी होता है तो लोग बाजा खसका देते, बोले आप कुछ बोलो, तो फर्स्ट टाइम में गया, बोला कि यार आज स्पीच देंगे, फिर मुझको एनलाइटनमेंट हुआ कि बोलते हैं कि भाई बाजा में बोलो, तो वो लैंग्वेज है कोड लैंग्वेज। तो आजकल थोड़ा मोड़ा मैं कीर्तन भजन सीख रहा हूँ, बिकॉज इट मेक्स मी फील लाइक पार्ट ऑफ द कम्युनिटी देन। दैट्स द रीजन, सो आई सेड नहीं, हम भी थोड़ा सीखेंगे, सीख रहे हैं अभी। तो इसके दौरान आपको बहुत सारे पंडितों से मुलाकात? बहुत सारे। हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त है पंडित संत, सिडनी में, संत कुमार। हाँ, तो वो मुझको बताया कि वो क्या कठिन परिश्रम करके इंडिया गया था, हाउ ही वाज इंट्रोड्यूस एंड इनिशिएटेड टू बिकम अ पंडित। बिकॉज आजकल सब पंडित इंडिया से नहीं आते ना, ट्रिनिडाड टोबागो, न्यूजीलैंड, सिडनी, लंबासा। तो ही एक्चुअली वेंट एंड ही कॉन्फिडेंशियली टोल्ड मी व्हाट क्या क्रियाक्रम करते हैं। कपड़ा उतारना पड़ता है सब, यू हैव टू वेक अप इन द मॉर्निंग, अपना खाना बनाता पड़ता है चक्की पीस के। So it is quite a ritual, and maybe one day we can get him over and he can then expound to us कि what it takes to become. उदाहरण के हिंदी में होता है? Expound, tell us, explain and expound मतलब अपने खुद जुबानी से बताएंगे हमको कि क्या क्या करते हैं, कैसे जाते हैं। Very interesting young पंडित। और फिर while I'm on the subject, मुझको बताया गया कि पंडित भी फिर से सब डिवीजन होते हैं। बिल्कुल। एक होते पुरोहित बोलते जो कि पूजा पाठ कराते हैं ना, शायद, और दूसरा डिवीजन होते हैं जो कि बेसिकली फुल ऑन पंडित होते हैं, सब करते हैं, सब चीज का ज्ञान होता है, सब चीज मल्टीटास्किंग। दिस इज माय नॉलेज इज शैलो, मे बी कुछ हमारे पंडित जी सुन रहे हैं, इस पे कुछ एक्सप्लेन करेंगे। और फिर पंडित का अर्थ क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ बीइंग अ पंडित, उसका अतीत अर्थ क्या है। मेरे ख्याल से इट इज़ टू ओबीडियंस होता है, और शास्त्र में लिखा है उसको प्योर वे फॉलो करना, उसको बदलना नहीं है। कभी कहीं हम गुस्से जाते बहुत बिलोंग कर दिया पंडित, लेकिन उसको उसी तरह करना पड़ता है, सब पूरा मंत्र शॉर्टकट नहीं करना है। सो ओबीडियंस एंड ऑल्सो देयर ड्यूटी, उसका ड्यूटी है टू सर्व द पब्लिक। टू वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा पर्सनल एनलाइटनमेंट का जो मार्ग है उसमें मैंने सीखा है कि आई थिंक दैट इज टू ऑफ द more important of the many roles जो कि एक जो भूमिका अदा करते हैं पंडित लोग। Obedience to the sorry. It is quite interesting because I'm learning so much today, because जो लोग सवाल उठाते हैं, खासतौर पर जो लोग ये पूछते हैं कि पंडित क्यों चार्ज कर रहे हैं इतना ज़्यादा, उसका रोल क्या है, उसका रोल। तो अब इंडिया इज ओपनिंग अप, द वर्ल्ड इज चेंजिंग, ब्राह्मण्स हो क्या वो उतर गए हैं, it's become a business now, it's become a business, a business भी कैसे, I don't know if you can say, I mean, I'll shed some light in what's happening and the process why this happens, and I mean to some extent I don't blame the pandit, हाँ उसको मैं दोषी नहीं दे रहा हूँ कि क्या होता है। नहीं, we're not blaming, we just defining, खाली definition करते हैं। लोग कहते हैं ना कि ये पंडित मुंह मांगा दाम बताते हैं ना कि हमें इतना चार्ज करते हैं, सेट फी होता है। नहीं, देयर इज रीजंस है ना, वजह होता है कि पंडित लोग ऐसा क्यों करते हैं। अगर देखा जाए तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो ब्राह्मण होते थे पहले के ज़माने में, उनका रोजी यही होता था ना कि वो पूजा कराते थे, जो भी दान उनको मिलता था, दान, वो काम वगैरह नहीं करते थे, they used to survive on the दान basically, उनको दान मिलता था, उसी से उनका घर चलता था। अभी देखा जाए तो क्या होता है कि अगर पंडित को देखा जाए तो पंडित को नौकरी करना पड़ता है। कुछ पंडित ऐसे भी है जो नौकरी नहीं करते, इसीलिए उनको भी घर चलाना पड़ता है। तो अगर आप दान देते हैं, उससे उनका घर, अगर उनको जो आप दान देते हैं अगर उनको बस नहीं होता, उससे उनका घर नहीं चलता, तब वहाँ पर वो जाकर कहते हैं कि मुझे और भी पैसे चाहिए। अगर सिडनी में देखा जाए तो सिडनी का कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वेरी हाई। अगर एक पंडित जो पूजा कराने आता है, 250, हाँ, अगर उसको
सिर्फ पूजा ही करना पड़ता है, वो बाहरी नौकरी नहीं करता है, तो उसका जो यहाँ घर का किराया होता है, उसका लिविंग एक्सपेंसेस होता है, उसका गाड़ी का खर्च होता है, उनके पास फैमिली भी है ना, जैसे हमने कहता है कि टैक्सी फीस, हाँ, ये सब पैसे जरूरी होते हैं उनके लिए। अगर जो ब्राह्मण होते हैं जो सिर्फ यही काम ही करते हैं कि अपना घर चलाते हैं सिर्फ दान से, है ना, तो वहां पर ये होता है। तो जो पार्ट टाइम जो पंडित है, जो टीचर है, कुछ लॉयर, अकाउंटेंट्स है, डॉक्टर है, ये पार्ट टाइम पंडिताई कर रहे हैं, तो उनका रेट कम होना चाहिए मेरे हिसाब से ना। बिल्कुल, ये जो दान होता है, दान होता है, नहीं होता है सर, अक्सर वो ज्यादा चार्ज करते हैं, बोला मेरा क्वालिफिकेशन है ना। ये जो पंडित का जो दान होता है, ये आदमी का अपना जो कर्तव्य है वो देता है, अपनी खुशी से उनको देता है। जी जी, जैसे दान मतलब दाना से आता है, दाने दाने पे जो को खाना दान मिलता था ना, उसके संगे कुछ कपड़ा लत्ता, धोती वगैरह, धोती लंगोटी मिलता था, वट एवर द फैमिली कुड अफोर्ड। लेकिन आजकल मेरा बदल गया है कि मेरा ग्राइप है कि दे एक्चुअली आस्क यू, कभी कभी डिमांड भी करते हैं, राइट, इनडायरेक्टली। तो ये जैसे मैंने ये जो मुद्दा तोड़ा है कि भाई व्हाट इज द ड्यूटी ना, कि बच्चा पैदा होता है उसमें कार्रवाई होती है, हम जब मरते हैं, बिगिनिंग ऑफ लाइफ, एंड ऑफ लाइफ, शादी होती है, हवन होता है ना। तो समटाइम्स जो कि कट्टर जो रिलीजियस पीपल होते हैं, वेरी वेरी फर्वेंट, उसका तो ऑलमोस्ट एवरी मंथ घर में कुछ ना कुछ होते रहेगा, एक ही फैमिली में। बिल्कुल। सो दैट मीन्स 12 मंथ्स में तो दे हैव टू फोक आउट क्वाइट अ बिट ऑफ मनी। तो व्हाट आई एम सेइंग, जो शुद्ध हमारा जो पर्पस था पंडित का, वो उस पे हम नहीं बोलते कि ये गलत है या सही है या ज्यादा है कम थी, कि यू नो ड्यूटी एंड ओबीडियंस टू द वेद्स क्या लिखा है, ह्यूमन की ड्यूटी करते हैं ना। मान लो अगर किसी कभी कभी लोग गुजर जाते हैं इन देयर पुअर फैमिली, तो एक जमाना ऐसे था पंडित आकर पूरा करके चला जाता था, दे डिडंट चार्ज, दे डिडंट डिमांड, जो भी देते थे ना। तो आजकल ये हो गया, उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हो गए हैं। बिल्कुल, दे माइट नॉट से इट, बट लोग जानते हैं कि भाई एक कॉफी खरीदेंगे उसका दाम 350 है, दे नो, राइट। सो इसी तरह उसका जो दान जैसे शादी में डाल दिया जाता है, और पंडित को जो क्या बोलते हैं सीधा, यू नो, तो वो सीधा सभी पंडित को दिया जाता है। और फिर जब कन्यादान के टाइम होता है माड़ो में, सब इट्स बिकम अ रिचुअल। और ऑस्ट्रेलिया में पीपल आर एफ्लुएंट, दे कैन अफोर्ड टू थ्रो आउट 20, 30, 40। हमारे फिजी में तो अभी तक पीपल आर अर्निंग लेस देन $100 अ वीक। बिल्कुल। तो वो मुद्दा है ना कि इट्स नॉट द एक्चुअल प्रिंसिपल ऑफ इट ओनली, बट कैसे हमारा पंडित लोग मॉडर्नाइज हो गए हैं, वी हैव टू गो विद द टाइम्स। Param ji, I want to shed some light in the same token as well. जैसे कि हम जैसे पहले ज़माने में देखते थे, पंडित गांव में पंडित था, ठीक है, तो एक दो पंडित होते थे गांव में, और वो टाइम मीडिया नहीं था, कम्युनिकेशन बहुत नहीं था, तो हम जाकर पंडित से बताते थे कि फलाना रोज़ हमारे घर पर पूजा है जी, आप करा दोगे। तो पंडित जी समय के देख के निकालता था, फिर आकर घर पर पूजा करा, शुभ मुहूर्त देख कर, और फिर पूजा। तो अभी मॉडर्न टाइम्स में क्या हो गया है कि हम देखते हैं कि जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया में पंडितों की कमी है ना, तो जैसे सप्लाई डिमांड होता है, हमारा पॉपुलेशन बढ़ रही है। हाँ, अब जैसे अभी मार्केट में आप देखो कि कोई केला बेचता है, तो केला के दाम अगर $5 किलो है, और खरीदने वाले केला कमती है और खरीदने वाले ढेर है, तो क्या होगा, दाम चढ़ेगा। तो उस सप्लाई डिमांड में क्या होता है कि यहाँ पर जो पंडित आप घर पर आता है, जैसे आपने जीत बोला है कि पंडित का खर्च है, ज़रूर है, सब जानते हैं, लेकिन जो खर्च जो पंडित हमें चार्ज कर रहे हैं, एक किसी के पर्सनली हम नहीं बोलते हैं, लेकिन जो पंडित हमें चार्ज करता है, ये आई थिंक हम सब जानते हैं कि पंडितों का खर्च है, और लोग जितना दे पंडित को, वैसे लोग यहाँ पर ढेर पैसा देते हैं पंडित को। आई थिंक द पंडित शुड बी सेटिस्फाइड विद इट। ऐसे मुंह खोल के, बहुत पंडित लोग मुंह खोल के मानते हैं कि मुझे 500 देना है। बिल्कुल, ठीक है, आई टोटली एग्री विद यू। तो क्या इसमें पंडितों का फॉल्ट नहीं है, पीपल आर स्पॉइलिंग देम, पीपल जो पब्लिक हो जाते हैं, जो जिसका जो सकता है 500 दे, वो जो 1000 दे वो देगा। तो अब अगर आप मेरे केले को $5 में खरीदते हो और मैं $10 में बेचूंगा, आप खरीदोगे? अगर खरीदोगे तो मैं बढ़ाऊंगा। तो कुछ लोग ऐसे सोसाइटी में, समाज में है जो भाव को बिगाड़ते हैं। तो क्या होता है फिर, कुछ लोग जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो पंडित उसके घर पर नहीं आता है। तो मेरा विचार ये है दो तरफ से। एक ये है कि जितने पंडित हैं, ठीक है,
वो उनको खुलेआम नहीं मांगना चाहिए, बिकॉज अगर आप पंडित हो, अगर आपने विचार कर लिया कि मैं पंडित ही करना चाहता हूँ, तुम्हारा जो रोजी रोटी है अगर उसी से चलना है तो ठीक है, यू हैव अ सर्टेन अमाउंट और लिमिट, ठीक है। अगर आप किसी काम करते हो आप खोल, बिकॉज वो आपका ड्यूटी है, ठीक है, राइट। आपने वो रास्ता अगर ले लिया है और जनता को सेव करना है, आपको एक कर्म करना है, तो फिर क्यों जाकर इतना पैसा मांगो? लिव अ सिंपल लाइफ, वो मार्ग फॉलो करना है। बिकॉज पंडित मटेरियलिस्ट नहीं है ना, वो उनको अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, नया घर नया कार नया। आप पंडित के रास्ता अगर फॉलो करना चाहते हो तो एक पंडित की तरह रहिए और उतने खर्च कीजिए जितना आपको ज़रूरी है। और फिर दूसरा तरफ है लोग जो बिगाड़ते हैं। अब मुझे आप लोगों से एक दरख्वास्त है, जैसे हमारे यहाँ पर इंडियन जो सनातन धर्म सोसाइटी है, जो समाज है, वो फिजी में भी है। जैसे आई थिंक देयर शुड बी अ रेगुलेशन, जितने पंडित प्रैक्टिस कर रहे हैं दे शुड बी एफिलिएटेड टू दिस ग्रुप्स, और दे शुड बी अ चार्ज, अ मिनिमम चार्ज और अ मैक्सिमम चार्ज, कि एक पंडित कितना, एक व्यक्ति कितना चार्ज कर, एक पंडित कितना चार्ज कर सकता है किसी को। अब जैसे अब देखिए एक गाइडलाइन, अब ऐसे देखिए अभी दिसंबर को शादी बहुत है, जनवरी तो दिसंबर बहुत शादी है, तो पंडित का भाव बढ़ जाता है। क्यों? पंडित डिमांड में हो जाता है, भाई मैं तेरे घर शादी नहीं करूंगा 200 में, क्या मुझे कोई 2000 दे रहा है? तो जैसे ए फेज है ना, दिसंबर टाइम फीजी जामा हो तो क्या होता है, 500 फेज जो है वो 1000 हो जाता है। तो पंडितों का भी सीजन चलता है। अच्छा, ऐसा होना चाहिए। हमारे फैमिली में हुआ है अभी रिसेंटली, शादी हुआ था। पंडित उनके घर पर जाते हैं। अब अभी आप देखो एक गरीब आदमी के घर पर शादी की कितनी खर्च होती है, उनके कपड़ा, उनके नौना, उनके जो और प्रोग्राम्स है, जो 3 रोज के प्रोग्राम्स। अगर बेटी का शादी है तो फिर क्या? तो पंडित के जो चार्ज 2000 होगी या 1000 होगी, तो लोग शादी नहीं करेंगे। इट्स वेरी हार्ड ना। तो आई थिंक द रेगुलेशन शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो एसोसिएशन है दे शुड प्रेस ऑन द पंडित्स, और एक ऐसा रेगुलेशन बनाए जहाँ पर सब पंडितों का एक राइट हो। अभी आप देखें कि डॉक्टर साहब, उनका भी राइट होगा, ठीक है, ही इज डन हिज डिग्री ऑन इट। आजकल जो नए नए पंडित निकलते हैं उसके पास कुछ क्वालिफिकेशन भी है, दे आर नॉट वेरी वेल नोन, बट दे स्टिल चार्ज यू अ वेरी हाई फी। आप यू जस्ट स्टोल द थंडर फ्रॉम मी, आप बोलिए तो मुझका उसके ऊपर एक कमेंट करना। हाँ, आप कैरी ऑन ना। तो जैसे मैं बोला, अब ये फिजी से एक पंडित आया यहाँ पर काम कराने, तो वो अगर 2000 में किसी जगह काम किया, तो वो फिर जो आएगा दूसरों के घर पर, उसका जो रेट है तो वो तो सोचेगा कि 2000, अगर आपने 500 निकाल के दे दिया परम जी, तो वो आपसे मांगेंगे, वो मुंह खोलकर बोलेंगे कि ये 500 में नहीं चलेगा। यानी पंडित के भाड़ा भर के बुलाओ, 4 बार एक सैटरडे को 2 पूजा किया, $1000 तो साधन हो गया। लेकिन देखो इसमें जो व्यक्तिगत, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप पंडित को अपने घर पे बुलाते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उससे पहले डिस्कस कर ले कि देखिए मेरे घर पर पूजा है। ऐसे नहीं सोचिए कि अच्छा हम जो देंगे चल जाएगा। पंडित से पूछ लीजिए, क्लियर कर लीजिए कि आपका क्या है, क्या चार्ज है, क्या, बिकॉज अगर ज़्यादा है तो उसको मत बुलाइए। अगर आपके दिल में ठेस पहुँचे और आपका उतना नहीं है, काबिलियत नहीं है देने की, लेकिन हम सीधा सबको देते हैं ना। हमारे घर पर भी पंडित आता है, मुझे से भी एक बार पंडित ने हमें मुंह खोल के बोला कि हम इतना चाहते हैं, हम उसको दे दिया। लेकिन ऐसे नहीं कि हमारे पास नहीं है, हम नहीं देना चाहते। लेकिन जो लोग काम करते हैं किसी भी, हम जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि किसी भी फंक्शन हमारे घर पर, किसी भी, जैसे अभी कोई हमारे घर के किसी का देहांत हो गया, तो कभी कभी इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी हो जाता है इसमें। कैसे ब्लैकमेलिंग होता है? क्योंकि अगर मेरे घर में मेरे बाप का मृत्यु हो गया, ठीक है, मेरा बाप तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन अगर होता तो उसका मृत्यु अगर हो जाता, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि आई विल डू एवरीथिंग कि उसका क्रिया, आखिरी जो क्रिया है, धूमधाम से करे, ताकि पंडित मिलेगा तो जरूर। तो क्या होगा कि जब पंडित बोलते हैं कि अच्छा आपको पिंड दान करना है, आपका गाय देना है, आपके ए देना है, तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग होने लगता है। क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर हम अच्छा से नहीं करेंगे उसका आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। अब पंडित ये जानता है कि इसके अगर हम बोलेंगे तो ये तो करेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आपका जो एक्सपेंसेस है वो अनएक्सपेक्टेड है। और एक व्यक्ति जब किसी घर में कोई मर जाता है, कोई रेडी नहीं रहता है ना। तो गरीब लोग जो फिजी में है, उनका जो तनख्वाह है, जैसे डॉक्टर ने कहा, वो बहुत कम है। अभी तो तक पंडित को कैसे दोगे आप पैसा? तो ये बहुत जरूरी है कि ब्लैक मेलिंग अगर जो पंडित कर रहा है, सब लोग नहीं कर रहे हैं, दे आर वेरी गुड पंडित्स आउट देयर, और जो कर रहे हैं इनका फायदा उठा रहे हैं, आई थिंक दे शुड स्टॉप दिस।
वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। मेरा टिप्पणी ये है कि जब सप्लाई और डिमांड ना, जैसे क्वालिटी के बात हुआ, मान लो अभी एक्चुअली केला का दाम ज़्यादा है थोड़ा, उसमें भी तो कभी कभी हम होते, एक समय ये भी था कि केला $14-15 किलो था। हम लोग जो केला खाते हैं, जो पसंद करते हैं केला, कुछ लोग नहीं केला खाते ना, तो वो हम खरीदेंगे बिकॉज और कुछ है ही नहीं। और हम ऑस्ट्रेलिया में एक बात हम सबको बता दें, ऑस्ट्रेलिया कभी भी चीज़ इंपोर्ट नहीं करता है इफ़ दे कैन प्रोड्यूस। दाम ऊपर चाल, लेकिन दे विल नॉट इंपोर्ट बनानास। अदर कंट्रीज विल इंपोर्ट एंड यू कैन सेल बनानास फॉर $2 to $3 a किलो अगर चाहो तो। बट यहाँ का जो एग्रीकल्चरल जो पॉलिसी है ना, खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। थोड़ा सा मैं बोल दूँ कि केला महंगा हो जाता, तो अगर कभी के पंडित का क्वालिटी, हम इस पे कुछ निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन दे आर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ पंडित्स टू। एजुकेशन किस तरह से करते हैं, उसका लैंग्वेज है, कितना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कुछ पंडित हमारे पास जो प्रकार करते हैं वो उससे ज़्यादा, हमसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। दे कीप गोइंग ऑन वन पाथ एंड दे कम बैक और दे स्टार्ट मेकिंग पर्सनल कमेंट्स विच इज़ वेरी वेरी, वो अपना ड्यूटी नहीं कर रहे ना, हाँ, कि भाई वो अपना जो एक्सपीरियंस है वो देने लगते हैं। तो क्वालिटी और डिमांड, कभी कभी फैमिली पंडित होते हैं, एक फैमिली में एक पंडित, उसको रखते हैं फॉर ऑल फंक्शंस। और कभी के देहांत होता, पीपल आगे से बता देते कि मेरा जब देहांत होगा, अंतिम संस्कार इसी पंडित को लाना। इमोशनल ब्लैकमेल हो सकता है कि वो पंडित जानता है कि दे विल कॉल मी। और एक फाइनल पॉइंट ये है कि जो क्वालिटी की बात हुई है, समटाइम्स वी हैव पीपल हु आर, जो प्रकार करते हैं वो पॉलिटिक्स और साइंस मिक्स कर देते हैं। मैं 3 पंडित से पर्सनली वाकिफ़ हूँ एंड दे ऑलवेज से कि इट्स बीन साइंटिफिक प्रूवन। तो वो एक थोड़ा एक वो करेंगे, फिर बोलेंगे हाँ इट्स बीन साइंटिफिकली प्रूवन। मॉडर्न है ना डॉक्टर, नहीं, मगर ये गलत बात है, बिकॉज रिलीजन और फेथ साइंस से जुड़ा नहीं है, इट इज़ फेथ। जैसे हम बोले कि किसी लोग पानी में चल रहे, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन फॉर इट, या किसी मरे आदमी को जिंदा कर दिया ना। तो ये जो हमारे दोस्त है, फ्रेंड्स है, हम संगे उठते बैठते जब बोलते हैं कि भाई दिस इज बीन साइंटिफिकली प्रूवन, दिस इज ट्राइंग टू टेल द ऑडियंस कि वो जो प्रकार कर रहे हैं इट्स ट्रू। मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है कि यू डोंट जॉइन साइंस एंड रिलीजन, बिकॉज फेथ में यू कांट प्रूव एनीथिंग कि सोल है या नहीं है, कहाँ जाएगा, क्या होगा, हमारा आत्मा है कि नहीं। तो ये जो थोड़ा मॉडर्न पंडित से एजुकेटेड, वो हर मन बोले कि ये यहाँ लिखा है, इट्स बीन साइंटिफिकली प्रूवन। सम थिंग्स कैन बी, बट फेथ जो रिलीजन चीज है उसमें साइंस नहीं है, तो वो विश्वास है, यू डोंट नीड प्रूफ। I have seen इससे कि चैट में लोग कमेंट कर रहे हैं, थैंक यू गाइस फॉर कमेंटिंग एंड गिविंग योर थॉट्स। They are actually it's a very touchy topic because there are गरीब people as well, जैसे कि आपने फरमाया कि कुछ लोग गरीब जो किसान लोग होते हैं, उनके घर में भी ये हादसा होती है, जैसे कि फैमिली डाइज और समथिंग हैपेंस, क्रियाक्रम करने के लिए पैसे नहीं होते, तो कुछ लोगों को सफ़र करने के लिए बस में तो कंकड़ वाले रास्ते में जाना पड़ता है, तो पंडित वो ना कर देते कि यार ये बहुत दूर है, हमको वहाँ नहीं जानी है। So these are the little issues that pandits, I suppose, जैसे कि आपने फरमाया कि they should belong to a संस्था, and I think Fiji में एक संस्था है। नहीं, यहाँ पर भी है ना, ब्राह्मण पुरोहित सभा फीजी है, यहाँ ब्राह्मण पुरोहित सभा ऑस्ट्रेलिया है, सनातन धर्म का है, और आर्य प्रतिनिधि सभा है, करवाते हैं तो। लेकिन ये रेगुलेटेड नहीं है, लेकिन अगर रेगुलेटेड रहता, यहाँ पर नहीं ना, फीजी में भी पंडित लोग का चार्ज डिफरेंट है, ऐसे नहीं है कि रेगुलेटेड चार्ज है। आई थिंक इट शुड बी प्रेस्ड, जैसे हम किसी संस्था के किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम ज्वाइन हैं, और इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग कि जो चार्जेस है, क्यों मैं, अगर हम फीजी जाना चाहते हैं, मैं 200 पे करूं, आप 600 पे करो, तो आप ज़रूर इस पे नाराज़ी लाएंगे ना। तो ऐसा रेगुलेशन जब रहेगा तो एवरीवन इज ट्रीटेड द सेम इन द सोसाइटी। तो हमारा समाज का जो हमारा जो हिंदुस्तानी धर्म है, उनका भी मान हम रखेंगे, पंडितों का भी रेस्पेक्ट रहेगा, बिकॉज वी ट्रस्ट देम ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल से तो 2 चीज़ होना चाहिए नौजी जी, पैराम डॉक्टर। क्या होता है, जितने लोग भी सुन भी रहे हैं ना, ये जो दान होता है, दिस इज फ्रॉम योरसेल्फ, या आपका, इज कमिंग फ्रॉम यू। सो आई थिंक कि जितने लोग अपनी मर्जी से जितने भी दान करते हैं, इट शुड बी हैप्पी एंड एक्सेप्टेड, बिकॉज दे आर गिविंग विद देयर हार्ट। और क्या होता है ना कि अगर जो पंडित खोल करके डिमांड करते हैं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। दिस शुड नेवर हैपन इन आवर सोसाइटी।
बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो लोग यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जितने लोग भी दान करते हैं ना, वो ऐसे नहीं करते कि आपको 25 सेंट देंगे या $25 देंगे। वेरी गुड। दे अंडरस्टैंड कि यहाँ पर भी खर्च है, लोगों को पैसे की ज़रूरत है। तो कितने अभी फॉर एग्जांपल मैं अपना घर पूजा रखता हूँ, I'm not going to give them 25 cents or $25. I know कि for me to get blessing, yellow note. तो कम से कम आप 200 दोगे या तो फिर कुछ ना कुछ 100-200 लोग जरूर देते हैं लोग। उसके बाद में भी जो दाना पानी रखते हैं, जो कपड़े रखते हैं, वडेबा, वो अपने दिल से देते हैं, दिल से देते हैं। और आई थिंक इट शुड बी एक्सेप्टेड इन द सेम वे। बिल्कुल। चैट रूम में फरमाया है कि जो मौलाना होते हैं देयर ऑन चार्ज, इस्लामिक धर्म में ये होता है कि they don't charge, they go and जो भी करते हैं, but I think there's a big difference between the Hindus and the Muslims out there। खास तौर पर ये क्यों नहीं चार्ज करते, हमारे पंडित जो होते हैं उनके ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। हालांकि ये अलग अलग they are from different religion, but उनका काम ही अलग है ना। हमारे जो इंडियंस होते हैं उनमें तो बहुत सारे काम होते हैं ना, काफी ज्यादा प्रोसीजर्स और अगर सही तरह से किया ना जाए तो वो पीपल के दिल में इमोशंस की सही नहीं हुआ कि काम पूरा नहीं होगा। मेरे वास्ट डिस्कशंस और ट्रेवल्स में मुझको ये भी बताया गया है कि जो आर्य समाज लोग है, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन वो डिमांड नहीं करते, वो बोलते कि जो भी देंगे मंदिर को डोनेशन कर दो, कि वो खास नहीं करते। बट मे भी हमारा जो आर्य समाजी और सनातन धर्म में भी इसमें कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे कि दे डोंट एक्चुअली डिमांड, सम ऑफ देम, कि बोलते हैं भाई जो भी दिल में आए दे दो, हम मंदिर को दे देंगे, बट विल कम एंड डू द आई थिंक वो एक ट्रेंड हो गया है ना, वो चार्ज करने वाला एक ट्रेंड हो गया। I've got a little point here as to why I think the pandits may be charging some more, some less. I think personally range. I think I would like to say a little bit on behalf of the pandit. If I was a pandit tomorrow, why would I charge more? I would charge for my quality. Sure. I would charge for my quality service because I belong on quality. I don't believe in quantity. Quantity ये होता है कि अगर 10 मुहूर्त नहीं निकलता है एक रोज में तो हम 10 पूजा करवाएंगे. That's a different issue. Mine is कि अगर मैं 2 भी कराऊँ, 2 मुहूर्त रखूँ, yes, it's a demand and I will do the puja properly. That's a thought I would like to put you to the forum. अभी गीत हम बजाते हैं, वापस आते हैं। अच्छा, उसके बाद में हम आपको एक विषय बताएंगे कि आपका जो तीर है, सीरियस कंक्लूजन, उसको हम बताएंगे। अर्जुन का बात। गुड क्वेश्चन परम जी। Fiji Indian TV, Fiji Indian TV. Fiji Indian TV, providing entertainment for the Fiji Indians around the globe. Every Sunday from 1 p.m. www.fijiindiantv.com. Be there. Yes, so we are talking about Pandits today और it's very interesting क्योंकि बहुत सारी चीज़ हम लोगों को सीखने को आज मिल रहा है क्योंकि everybody has done research. Coming back to the topic once again कि जो सवाल मैंने पूछा था या तो फिर जो ख्यालात मैंने पेश किया था वो था ये कि if I am a Pandit, for example, and I have a right to charge and I think कि my quality is much better, कि हमारा जो भाषा होगा जो हम पूजा करवाएंगे वो ऊपर वाला बहुत ही अच्छी तरह से सुनेंगे तो so I think personally my quality is good compared to other pandits and I would of course charge 250. Can I give a comment on that? Yes. Okay. वो केला जो मैंने जो एनालॉजी दिया था ना कि क्वालिटी है वो ज़्यादा लंबा केला है या मोटा पतला है या येलो है ना तो उसका बोले कि इसका भाव ज़्यादा होगा क्योंकि मे बी ही इज बेटर। तो इफ़ यू कंपेयर टू द मेडिकल फील्ड अगर आप स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो दे विल चार्ज यू मोर बिकॉज दे हैव स्टडीड, ऑफ कोर्स, यस, दे हैव गॉट स्पेशलाइजेशन। बोला मैंने फेलोशिप या डॉक्टरेट किया या मास्टर्स किया, मुझको ज़्यादा चार्ज करना चाहिए। बट फिर ड्यूटी आ जाता है ना उसमें, अगर एक पंडित के पास PhD है और एक पंडित खाली क्लास 8 एजुकेशन किया है, हो सकता है जो क्लास 8 वाला है उसके पास पंडितई में ज़्यादा ज्ञान होगा। As long as he understands and reads Sanskrit and he can अपन प्रचार कर सकता है। And then if you go and say कि देखो this pandit is got a doctorate, हम just निंद्रा नहीं करते, ये एक मान लो इंजीनियर है या PhD साइंस करा है और he's got a doctorate in his field. Doctors in his field but not in pandit. Yes, पंडिताई, that's right. तो यहाँ पर हम देखते हैं people कि भाई you're an engineer
बट अपना तुम्हारा पंडित ही में डॉक्टर नहीं है, तो हिया एक रकम का ब्लैकमेलिंग हो जाता है कि देखो ये काफ़ी क्वालिफाइड आदमी है, इसको लाएंगे क्योंकि अच्छा से करेगा. बट इज इट ट्रू? आई डोंट थिंक सो. अच्छा, इसके विषय में मैं कुछ विशेष बातें करना चाहता हूँ. आई मीन इट्स गुड टू नो, इट्स आउट ओपन फोरम एंड पीपल शुड नो. लोगों को जानना चाहिए कि हमारे जो ये वेद और हमारे ये जो धर्म ये क्या बताते हैं. अगर देखा जाए, जैसे कि हमने पहले ये कार्यक्रम में डिफाइन किया कि एक ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है और एक पंडित क्या है. A pandit is an educated guy. Basically, he is got knowledge on field. वैसे हमारे धर्म में देखा जाए तो there is a Brahman and there is a Pandit. पंडित क्या है? A guy that has got lot of knowledge. आप डॉक्टर, you can be a पंडित. अगर आप हमारे वेद के विषय में पढ़ेंगे, you know, अगर आप अपना पूजा आप करना चाहते हैं, you can do your पूजा by yourself. आपके पास उतना ज्ञान है, आप पूजा खुद कर सकते हैं. हमारा वेद ये बताते हैं कि अगर आपको पूजा कराना है तो एक ब्राह्मण से पूजा कराना चाहिए. क्यों? पंडित से नहीं. व्हाट्स द रीजन? क्योंकि जो ब्राह्मण होता है वो संस्कृत पढ़ते हैं, उनका नॉलेज जो होता है डीप नॉलेज, वो ब्राह्मण होते हैं. उनका जो स्वभाव होता है, ब्राह्मण का स्वभाव क्या होता है कि वो घर गृहस्थी में नहीं है. जितना समय है वो अपना ईश्वर पर लगाते हैं. फुली वेजिटेरियन. शादीशुदा नहीं है. शादीशुदा, बिल्कुल. उसका जो कर्म है वो सिर्फ धर्म से रिलेटेड है. उनका घरेलू वास्ता नहीं है. लेकिन फिजी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड स्टेट्स में, हमारे फिजी कौम में ये बहुत कम है, मे बी 1%. हाँ, और हमारा मैरिड. या बिल्कुल. Some of them do eat meat. बिल्कुल. Some of them. बिल्कुल. और देखा जाए तो हमारा जो धर्म और वेद यही कहता है कि जो अपने घर पूजा कराते हैं, क्योंकि उसमें कहते हैं ना, रामायण में भी कहते हैं, श्रीमद् भागवत गीता में भी कहते हैं कि ब्राह्मण से पूजा करना चाहिए. पंडित, मैं भी सकता हूँ अपने घर पर पूजा करना. इफ आई एम एजुकेटेड, आई नो व्हाट टू डू. मंत्र मैं जानता हूँ, आई कैन डू माई रोट, आई कैन डू माई कथा माई सेल्फ. और संस्कृत सीख सकते हैं. संस्कृत सीख सकते हैं, इंटरनेट में भी सीख सकते हैं. ब्राह्मण का ये कर्तव्य है ना कि वो भारी नौकरी नहीं करता है, वो भगवान में लीन रहता है, अपना वेद सीखता है और वही वेद आकर आपको बताता है. उनका कहते हैं ना कि डायरेक्ट कांटेक्ट होता है ऊपर वाले से. जी, बिल्कुल. हाँ. और जो हमारे पंडित जी होते हैं वो है स्पेशलाइज्ड फील्ड का ज्ञान होता है उनके पास. ही नोज हाउ टू डू ना, रोट होता है, कथा होता है. ही इज एजुकेटेड. वो हम भी कर सकते हैं. तो ये डिफरेंस होता है ना. जैसे कि आपने जैसे बोला है जीत जी, आई थिंक जैसे मैं पहले बोला था, जो पुरोहित सभा है, इनका रोल जो है यहाँ पर इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल. क्योंकि दे आर द वंस हु कैन डिसाइड कि किसको वो मौका दे सके कि दे कैन गो एंड डिलीवर दैट. रेगुलेशन है ये. रेगुलेशन. जैसे अगर मैं अभी हम किसी के निंदा नहीं, एक बार फिर जैसे ट्रेंड है, अगर जैसे मैं ये देख रहा हूँ कि पंडित जी ये काम कर रहे हैं, दे मेकिंग $200, $1,000, $500. मैं बोला चलो भी हम भी पंडित बन जाएं, जस्ट फॉर द मनी, कुछ नॉलेज पा जाएं. बिकॉज इंटरनेट में तो सब कुछ है, कुछ मंत्र सीख लें. और हम भी अभी आप देखो, अभी इंटरनेट खोलो तो मीडिया में पंडित लोग का कमर्शियल है ना, वो एडवर्टाइज करते हैं कि मेरा काम ऐसे है, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ. तो पीपल गो एंड सी देम एंड देन दे एक्चुअली फाइंड पंडित्स. आजकल नहीं तो हम कोई से पूछते हैं, भाई आप कोई पंडित को जानते हो? लोकल न्यूज़पेपर में भी. तो वैसे पंडित तो बहुत तरह के होते हैं. तो आई थिंक द रेगुलेशन इज इम्पोर्टेंट. कि जैसे आप बोले हैं, मिसकंसेप्शन ये है सोसाइटी में, जो ब्राह्मण है उसको पंडित भी बोलते हैं. एक मिसकंसेप्शन है. तो अब जैसे आपने क्लियर कर दिया पंडित क्या है और ब्राह्मण क्या है, इसमें अंतर है. जैसे जो ब्राह्मण है उसका जो विजडम है, ही इज अनअटैच्ड to materialism. और जो हम करते हैं ना, his only purpose is one thing, to deliver that knowledge, spiritual knowledge to people. तो people भी इसमें तरनतार पाते हैं, अपने जो फल है उसको पाते हैं, भगवान तक जो स्पिरिचुअलिटी उनका है, उसका जो मनोकामना है दिल का, वो पूरा होता है. Tell me one thing, जो आप जब बात कर रहे हैं, tell me this, कि जो पंडित होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत सारे ज्ञान होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास शॉर्टकट नोट्स होते हैं, और वो क्या कहते हैं, मंत्र मारते हैं ना करने के लिए पूजा पाठ इत्यादि में.
तो क्या जो वो मंत्र मार रहे हैं, एक आम आदमी अगर पंडित नहीं है तो उसको पता नहीं वो मंत्र सही है या गलत है। जरूर। अब मंत्र की इन्वॉल्वमेंट क्या है, उसका सही अध्याय क्या है, डू दे नो, उदाहरण क्या है, डू दे नो कि ये पंडित सही करा रहा है या गलत। तो आम आदमी के पास ये नॉलेज नहीं है। हाँ, पंडित स्पेसिफिक्स होते हैं जिनके पास नॉलेज होता है, तो आम आदमी डोंट नो कि ये कितना मंत्र पढ़ी से जो फॉलो करता है, जो एकदम उस पे ही निर्भर रहता है, दे नो। तो आई डोंट नो इफ आई इफ यू, आपको शायद मालूम होगा, डू यू नो मंत्र के बारे में? इफ यू डोंट नो, आम आदमी नहीं जानता है। जरूर। परम जी, जैसे आपने बोला है, द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज डिलीवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हु इज डिलीवरिंग द मैसेज, कौन पूजा कराता है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे मैंने बहुत दफ कह दिया है कि ये जो सोसाइटी है, जो एसोसिएशन है, जो प्रतिनिधि सभा है, they should go through a forum and get past कि ये मंत्र पढ़ रहा है ना। जैसे कि अभी if I want to practice रेडियोलॉजी, मुझे I have to go through एसोसिएशन, मुझे लाइसेंस लेना पड़ता है। रजिस्टर, लाइसेंस के रजिस्ट्रेशन के हम कुछ नहीं कर पाते। अगर ये रजिस्ट्रेशन हो जाए सब पंडितों का, आई डोंट नो, मे बी देयर इज, बट आई डोंट थिंक एवरीवन इज रेगुलेटेड। तो क्या होता है, अगर कोई पंडित जाकर एसोसिएशन के खिलाफ कुछ करे, देयर शुड बी अ फाइन। पीपल शुड एक्सेप्ट देम। अगर सोसाइटी उनको एक्सेप्ट करेगा तो ऐसे से लोग बहुत निकलेंगे। लेकिन जैसे मैं बोला कि अगर मुझे एक मौका मिले पंडित बनने का, क्यों मैं रेडियोलॉजी जाकर, मुझे भी तो 200-300 डॉलर्स आवा भैया, मुझे भी दे दो। मतलब अकाउंटेबिलिटी चाहिए। बिकॉज़ क्या होता है कि जैसे कि मैंने पहले कहा, टू एडिंग टू दैट इज कि हाउ डू वी नो कि वो पंडित जो मंत्र मार रहा है, जो पूजा करवा रहा है, हवन करवा रहा है, वो सही कर रहा है। तो अगर वो किसी संस्था से जुड़े हुए, इफ दे आर accredited for some, we should have the license, we should check for the license तो चेक नहीं कर, लेकिन वो he'll be trained specifically according to that college ना। एग्जाम्पल जैसे अगर आपको प्रीचिंग करनी है बाइबल के, you have to go to Bible college। क्वेश्चन ये है कि कैसे करेंगे, हाउ डू वी एक्चुअली मटेरियलाइज? that is not for us to do it। Is it a pressure group? Do you need an outside lobby group, or should be coming from within the organization? I think मेरे ख्याल से पंडित लोग तो नहीं करेंगे। I think this is the responsibility of the association, because they're the head, they're the body. The body controls everything. Umbrella body जो होता है। और उसका इम्पोर्टेंट है, अगर कोई उसके खिलाफ काम करे, there is society, there is people, और people have to work, जितना जनता है, जितने सोसाइटी में हम लोग हैं, we should work in hand in with the प्रतिनिधि सभा। तो अगर ऐसा कुछ हो, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया में हम देखें, जितना ट्रेड्स पीपल है, कितने लोग ट्रेड्स पीपल को लाइसेंस नहीं, अंडरनीथ काम करते हैं, लेकिन इफ यू आर कोर्ट, देयर इज अ पेनल्टी, देयर इज अ बिग फाइन। सो अगर पंडितों में भी ऐसा एसोसिएशन में अगर है, एसोसिएशन इज देयर फॉर समथिंग ना, और जो लाइसेंस पंडित जो एसोसिएशन है उसको लाइसेंस चार्ज करना चाहिए, लेकिन उससे वो अपना संस्था को चलाएंगे और रेगुलेशन भी रहेगा और फीस भी बढ़ेगा, और सोसाइटी जो है the individual citizens will be happy, we safer, we getting the right people, we not getting them on the road through someone else's recommendation। जिसको शायद पूरे मंत्र नहीं मालूम हो। अच्छा, मैं इसमें एक मुद्दा छोड़ता हूँ। हमारे जो प्रोफेशनल फील्ड में है, ये लोग शायद नहीं जानते होंगे कि मेडिकल और डेंटल प्रोफेशन में people who do really well, right, are not necessarily the smartest and the most qualified. It has been researched and proven, और मेरा पर्दा खुल गया जब मैंने ये रिसर्च पढ़ा कि those who are most successful not necessarily did A grade at university। Sure. Agree with that, Moji? जरूर। आप हम लोग सब फील्ड में हैं, हम तीन लोग, they're not necessarily the best looking like some of us, or intelligent or smart or talented. They are normal basic students who come out and they apply themselves। Practical the application अपना जो natural basic वो होते कि भाई ये देखो इसके पास ये A grade सा, इसको they got lots of क्या बोलते credits, and they come out, they can be the worst radiologists or dentists or doctors, but the business में जो successful होते हैं, they apply themselves, and लोग बोले कि भाई ये तो हरदम 45-50% से पास करता हूँ, they're doing better than us because they have people skills। You learn after you get your piece of paper, how do you apply yourself in society, how do you become a good practitioner, चाहे पंडित हो या डेंटिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, प्लम्बर हो ना, तो उसमें PR आ जाता है, पॉपुलैरिटी आ जाता है। और कभी के लोग बोलते कि ये पंडित के बुलाओ, ही इज अ लिटिल बिट अम्यूजिंग है, थोड़ा जोक बोल देवे, ये दे माइट नॉट बी द बेस्ट ना। और कभी कभी बोलते कि वो बहुत प्योर है, और कुछ लोग बोलते नहीं वो इंडिया के पंडित है, ज्यादा जानता होगा। तो ये सब थिंग्स पीपल आर सेइंग, वी नीड टू डिस्कस दिस कि इज इट ट्रू? आई डोंट थिंक सो।
I think it's how तुम्हारा जो ड्यूटी है, obedience, और how do you deal in the society कि people बोले yes ये पंडित जी है and मिलनसार है, reasonable fees है, demand नहीं करता है, and people like you. If they don't like you, they won't hire you. Basically, this is psychology आ जाता है ना, personality आता है. कभी हम कुछ लोगों से मिलते हैं, within seconds we say इसमें हमारा chemistry नहीं चलेगा, immediately ना, like काम पे same जैसे काम पे हमारा patients आते हैं, immediately हमारा वो like poles attract नहीं करते ना, तो वो भी आ जाता पंडिती में कि कभी कभी लोग अच्छा पंडित होते हैं, they knowledgeable, ज्ञानी होते हैं, but maybe there's something with the way they deliver. तो ये भी बहुत important है कि some popular pundits may not be as ज्ञानी or qualified, they may just have high school education, but they might be the best pandit. जी, और ऐसे भी होता है डॉक्टर जी, बहुत लोग पूजा नहीं कराते क्योंकि फीस से डरते हैं ना. तो जरूर ना, a lot of people can afford it ना. Affordability अब तो नंबर baseline हो गया है अब. I think personally मेरा ख्याल है कि पंडितों को मुंह खोल कर पैसा नहीं मांगना चाहिए, जैसा भी हो, कहीं भी हो. बिल्कुल, that is wrong. जो लोग अपने वो रीति रिवाज में चला यार, जो भी मिल जाए. बट जैसे परम जी आपने बोला है they have to make a living, mortgage pay करना है, तो वो दोनों कैसे बैलेंस करेंगे? This is a very interesting forum. जैसे अभी जीत आपने कहा कि हम 25 सेंट्स तो नहीं देते हैं ना, 1-200 तो जरूर देते हैं, और 2 घंटा का कार्यक्रम होता है, 1-2 घंटा का कार्यक्रम, तो पंडित जी उसके बाद में चल देते हैं, वो बैठते भी नहीं है. उनका होता है ना पंडित जी का. ऐसे मैं बोलता हूँ कि इतने लोग देते हैं ना, लोग समझदार हैं, लोग ऐसे भी नहीं सोचते हैं कि पंडित हमारे घर पर फ्री आकर कहते. सबके पास समय के बहुत इम्पोर्टेंट है ना, और उसको पंडित लोगों के पास भी फैमिली है, घर है, बच्चे हैं, परिश्रम, और वी एक्चुअली गिव इट our heart. So according to you, what do you think is the best fee? ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, फिजी की तो छोड़ दो. I think ये मेरा ऊपर नहीं है फीस करने का, ये तो एसोसिएशन का ऊपर है ना, ये तो सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा का ऊपर है. रेगुलेट करेंगे क्या रेगुलेशन, क्या they have to do a survey. They probably have to get all the acharyas, the pandits, the brahmins together. People का view भी लेना चाहिए, और then regulate something that's outcome which is better for all the people. पुरोहित जो सभा है, जो पुरोहित लोग, जो ब्राह्मण लोग हैं, उनको भी उनका भी खर्चा चले, because they need something ना. फ्री तो कोई, मैं बोलता हूँ कोई पंडित फ्री काम नहीं करेगा, और हमें कराना भी नहीं चाहिए. मॉडर्न पंडित नहीं करेंगे, करना भी नहीं चाहिए. I don't think so, because we are not doing a favor for them. I think we are foolish if you're doing we this. need, there's two people we need, lawyers and pandits, और पादरीज होते हैं लाइफ में, accountants भी शायद. हाँ, और एक बात मैं जल्दी से बोल दूं, मैंने एक प्लम्बर को बुलाया एंड उसका फी रहा $125 an hour, मटेरियल्स को छोड़कर. ठीक, तो मैं बोला यू अर्निंग मोर देन मी, मैं वो श्रक कर दिया ना. तो कोई बात, मैंने जोक किया. तो नॉर्मली पीपल विल चार्ज अकॉर्डिंग टू कितना टाइम लगता है, how long does it take, the nature, complexity, कितना रिस्क होता है, रिस्की काम में ज़्यादा लगेगा, विजडम टूथ उखाड़ते नर्व डैमेज जगह ज़्यादा होता है, और ऑर्डिनरी एक्सट्रैक्शन कम, और फिर कितना मटेरियल्स यानी कि सामग्री लगता है. तो ये सब चीज़ को फैक्टर करना पड़ता है पंडित जी को भी. And they should be charging actually something for all the complex things, ना? Well, the pandits are not charging for the samadhi. No, this is what I was going to say. People make अपना जितना सब लिस्ट बनाते लाते हैं ना. People get everything for the pandits. आजकल तो पैक में मिलता है ना, पूजा पैक, पूजा सामग्री, हरिराम ट्रेडर्स. और जो भी नहीं मिलता है तो we try to find it out from here and there. Plug for. अब जैसे अभी सबके पास केले का पेड़ नहीं है घर पर, और it's a important thing in our पूजा, और आम का पत्ती भी ऐसे पूजा दे देना, पूजा के पेड़. अभी तक मुझे केले का पेड़ नहीं मिला है डॉक्टर साहब. मैंने पॉट प्लांट में करके जमा दिया है. Thank you very much. तीन पत्ती बहा दिया है. Very good. It's alive and kicking and it's ready for you. Thank Well, you. we're talking about pandits today, ladies and gentlemen. जो भी लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और रेडियो अफसाना में इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आपको ये बता दें कि जो पंडित के बारे में अगर आप कुछ चर्चा करना चाहते हैं, head of to FijiIndianTV.com, और या तो फिर आप जा सकते हैं हमारे ग्रुप्स में on Facebook and comment, chat room में जा सकते हैं, which is on www.radioafsana.com. And I think let's move ahead and let's see. I would charge a different figure if I hired a pandit in Australia. के हिसाब से आप कितना चार्ज करोगे? What do you think is reasonable? 2 घंटे का पूजा है, जो भी आप करवा रहे हैं रोजी ने कहा, तकरीबन 2 घंटे भोजन भी देते, सीधा भी देते आप, साथ में कुछ आलू वगैरह भी रखते हैं ना. आलू का भी दाम बढ़ रहा है आजकल ना, केले भी रखते हैं, लंच का फ्रूट हो गया ना. I'll give you 2 scenarios, but I mean this is important. Agar I'm a pandit and I'm working
I can afford everything. And if I'm doing a service, I mean, a service like you are justice of peace, you're doing a service to the community. Agar aap pandit hai, if you're a pandit, the first person you should reporting is to the God. You representing the God. So Antaryami is the best. So number one. link jayega. Bilkul. I mean, if I'm doing a community service, I'm a pandit because when I wanted to become a pandit, I thought about all these things. You want to do? No. I'm saying if I did want to become, I'll think about all these things. Chalo, I mean, agar mujhe naukri chhodna hai, then it's a different sacrifices. So that's a different route. Agar main kaam kar raha hu, I can afford my house, my car, and all these things. I'll do, and I'll accept whatever people give me because they're giving me a dance. So I will never say कि मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है. On the other hand, अगर मैं काम नहीं कर रहा हूँ और and I basically wanted to survive only on Pandit, then I'll do something else. I'll still say कि मुझे दक्षिणा मिल रहा है, whatever people giving अपनी इच्छा से दे रहे हैं. I will never demand a sort of some amount. So you're talking about today's world? Because today's world. Because अभी देखा जाए तो every pandit सिर्फ एक पूजा नहीं कराते. They've got multiple pujas throughout the day. But multiple pujas करवाते हैं. एक पे I'll have to interject over there कि ये सब मुहूर्त के अनुसार नहीं होता है. That should be. तो डिपेंड्स कैसा पूजा होता है. दिन में कितना बार निकलता है. अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, कहते हैं कि ठीक है चलो 5 बजे शाम को कथा करके उसके बाद में रिमाइंड कर देना. तो obviously that's two पूजा दे. सुबह में लोग अगर सूर्य नारायण पूजा करते हैं तो ये लोग डिफरेंट रिचुअल्स भी होता है. बहुत तरह की पूजा होता है. तो एक रोज में कम से कम 4 या 5 पूजा पंडित करते हैं. And I think that is sufficient. Okay, let's go back to Paramji's question, which is कितना charge करना चाहिए. I will never charge. Going to Moji's thing कि एक अगर organization हो जाए union की तरह regulated charge नहीं. I suppose how much would I pay? Okay, my comment here is might be कुछ इतराज़ मान लेंगे पंडित जी. मान लो what is the basic rate for a person जो कमाते हैं यहाँ पर I'll start $30 an hour, $40 an hour. I'm going to say तो I would say कि अगर एक आदमी के घरेलू जो इनकम है ऑस्ट्रेलिया में एवरेज मिडिल क्लास 65,000 से धर लो, ठीक है, 65-70, that's a good income, right? Average is more than average. हाँ, 55-60 धर लो, 60. Okay. I pay my nurses 60,000 a year, by the way, so just don't mind that. That's how much my nurses cost me, gross. ठीक है, तो 60,000 में काम करते हैं. तो आवली रेट में अगर करेंगे, अगर पंडित जी 2 घंटे के लिए 200 चार्ज किया मान लो, तो यूनियन के मुताबिक that's overcharging because the person who is paying is only earning $50 an hour gross or $40. So I'm just looking at it in a pure clinical, scientific, statistical way. कितना देना चाहिए? हाँ, 2 घंटा ट्रेवल टाइम जोड़ के 3 hours रख लो, half an hour ट्रेवल टाइम each way. तो 3 hours में पंडित जी अगर चार्ज करेंगे $50 an hour और कमाई इनकम घर का है $30-40, तो उस मुताबिक देखते हैं तो that's overcharging. Bro, you won't hire me. I won't get $50 an hour. No way. Not for my pandita work. Yeah. I will at least charge you $250 per puja. But why? $250 to $300. They don't. Some pandits don't have a qualification. My preparation, my meditation, my food fasting. I think a lot of people give actually $200 or $250 or $180. Easy. I would say $50 an hour. Because पंडिताई करने के लिए you don't have to go to university. Hex नहीं pay कर पड़ा है. Inflation ना. Degree नहीं, BDS, bachelor's या masters नहीं है. And they basically trained, and it's like a private sort of संस्था है ना. It's not a profession as such कि you're registered and तुम्हारा regulated fee है. आप अगर किसी लॉयर को बुलाएंगे जो पंडित है, $50 कहाँ ले यार, हमें बताओ. If you're a dentist and you're practicing pandit as well, example Sunday for example, आप $50 में पूजा नहीं करवाओगे जमाने में. That's where the point comes in. Are you charging according to your profession or according to what a pandit will charge? तो पंडित का credibility is very important ना. जैसे हम जो लोग बुलाते हैं पंडित को, we should know the credibility. क्या कैसा पंडित है. We shouldn't actually entertain pandits who are actually not the Brahmins, as you said. We shouldn't. Because if we do them, there will be more pandits being born in the society. There will be many pandits like that. You know what I like in pandit these days? I like a pandit with good nature, a good personality, and जो पूजा करवाता हो
खास तौर पर he reaches you. It gets back to my point. The richest doctors and dentists in the world are not the ones with the big degrees. They're the one who are successful. They have good personality. और jokes करते हैं, करके गाना उन्हें गा देते हैं बीच में, you know. But this is a statistical fact. It has been proven, as आप जानते हैं कि हमारा profession में they want the personality ना, कि वो ये वो बहुत अच्छा डॉक्टर हमसे थोड़ा गजल सुना दी सो आप राइट. और परम जी एक बात और है, वो पंडित हमारे घर पे आए जो धोती पहन कर आए. अच्छा, वो आपसे आग्रह है. Well, I think it's a traditional dress. Traditional way अगर हम देखें हैं वैदिक कल्चर जो है, वो धोती जो है बहुत साफ सुथरा कपड़ा है ना. It's a very pure form of पोशाक, और उसमें स्टिचेस नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, सफेद होता है. उसका मन उससे जो अगर जो पंडित पहनता है उसका जो मन है वो शुद्ध रहता है. और इम्पोर्टेंट है कि वो जो रिवाज है उनको, बिकॉज देयर इज अ रीजन ना. धोती पहनना का ऐसे नहीं कि हम कोई ट्रेंड चला, फैशन चला, पहन लिया. क्या पिजामा पहन सकते हैं? व्हाइट पेंट्स, व्हाइट पेंट्स में तो स्टिचेस है ना, और पेंट्स टाइट है और वो सब है. सीएन नहीं चाहिए. जो धोती है, धोती में कोई जगह पर सीएन नहीं, वन पीस ऑफ क्लॉथ. ठीक है, वो पीवा है, व्हाइट है. और उसके धोती के बोलते हैं, जैसे मैंने कुछ रिसर्च किया था धोती के बारे में, तो धोती बोले धोती धो यानी कि वॉश और ती उसको करो. तो धोती ऐसे सफेद कपड़ा है जो हाली से टांगते हैं, झुरा जाता है, पहन लेते हैं. धोती जैसे इंडिया में तो हम देखते हैं लोग जैसे लुंगी पहनते हैं लोग ना, लुंगी धोती इज अ डिफरेंस. लॉट ऑफ पीपल गेट कंफ्यूज. लेकिन पंडितों को धोती पहनना चाहिए. आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे एक और बात है, लेदा नहीं पहनना चाहिए. ओ जरूर, चमड़ी जरूर है. नो लेदा वास्तव में, जैसे ये बात बिल्कुल चमड़ी की चीज नहीं. पूजे का टाइम भी ना यू कैन वेयर, वैसे भी जूता वगैरह जो चपली है शुड बी नो बेल्ट, नो लेदर. बेल्ट आउट एज वेल. तो हम तो सब टाइम जब रामायण करते हैं या पूजा में तो बेल्ट तो दे शुडंट बी. दैट्स व्हाई दे वेयर द धोती. देयर इज नथिंग इन इट ना, खोस लेते खाली ना धोती लंगोटी. कमेंट इन द चैट रूम कि बिस्वाजीत के पंडित बनाए दो. He'll be a good contender. Of course, we are going to thank you guys. Well, let's take a short break. Take break, yes. Go for it. We'll talk more about the pandits. Very good. Back it's an on a hot interesting topic. Yes, it's a very interesting topic today. We are talking about pandits, and हम जैसे कि मैंने पहले फरमाया था, मैंने सोचा था कि ये forum we're going to go to a different angle. थोड़ा माल रहेगा, थोड़ा heavy हो गया है ना. Heavy हो गया है, but it's a good thought. We've got to learn some new things today with some information from Noji and yourself and him. All of us. We did a bit of research. And any other good thoughts that you would like to propose? एक क्विक वाला, अभी जल्द में मैं शादी में के बाद में एक पूजा में गया था, और वहाँ एक पंडित जी, वेरी नॉलेजेबल, गुड फ्रेंड ऑफ माइन, उसने कुछ बोला. तो मॉडर्न जमाने में पंडित लोग ये करते, थोड़ा साइंटिफिक होने लगे. वो कोटेशन देते हैं. पहले जमाने में बोलते रहते था, पीपल समझते नहीं थे. अभी बोलते कि देखो ये यहाँ पर लिखा है, चैप्टर 6 या वर्स 3 या 4. जैसे एन एग्जांपल कि संस्कृत में या रामायण में या वेद में यहाँ लिखा है, और रेफरेंस करते हैं ना, विच इज अ गुड थिंग. कि लोग कैन से हाँ पंडित जी क्या बोला. जैसे ये जो मुद्दा छेड़ा था परम जी कि हाउ डू वी नो कि आर दे सेइंग ना राइट थिंग और करेक्ट वे. तो ही वाज, आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड. उसने सिर्फ बताया कि देखो यहाँ लिखा है. हम नहीं बोलते कि ये यहाँ पर लिखा है. समटाइम्स पीपल के कि वो बहुत खराब पंडित ऐसे बोल देता लेडीज के बारे में या बच्चों के बारे में या बुजुर्ग के बारे में. तो वो यही बोलेंगे जो वेद शास्त्र में लिखा है. और उसने एक मुद्दा ये छेड़ा कि बिट कंट्रोवर्शियल विद द लेडीज. इससे कि बोले इसमें लिखा हुआ यहाँ है कि द रूट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स आर फीमेल्स. तो जल्द से बता दिया कि देखो मैं यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है. नॉट दैट एवरीबॉडी बिलीव्स इन इट और फॉलोज इट. सभी धर्म में कभी कभी एक पीस आ जाता है कि दिस इज द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम होता है, और जल्दी से रेफरेंस दे दिया कि हम नहीं बोलते. वहाँ पर 2 और पंडित थे, तो दे क्विकली सपोर्टेड हिम एंड सेड लुक, कभी कभी लोग बोलते हैं कि पंडित ऐसे बोल दिया था, गलत बोला या सही. वो वही बोलते हैं जो लिखा चाहिए. तो पंडित लोगों को थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए कि मेक श्योर दे डोंट diverge and distract like I do sometimes, and they should stay on the सही मार्ग पे रहना चाहिए. And that way people will say, they will have more respect for them कि ये सही तरह से करता है. That's one of the ways we know that they are doing it. We can cross reference. Well, there's a wonderful comment that came into the chat room by Angel. अर्जय एंजल जी ने फरमाया कि उनकी एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे हुई हैं कि ओवरसीज से लड़का था और लड़की फिजी से.
तो पंडित ने देखा है कि उसको दोनों जगह नेचुरली दे हैव टू डू द पूजा हियर। शादी में ये होता है कि लड़के के घर आकर वो क्या करते हैं माड़ो करते के फिर लड़की के यहाँ वो माड़ो करते, तो दोनों जगह वो काम करता है। रेट्स डिफरेंट नहीं, तो उन्होंने कहा कि we will charge $350 for all the rate for the whole wedding, because उन्होंने कहा कि this is Fiji basically। तो उन्होंने देखा कि लड़का बाहर से आया हुआ है, अरे तगड़ा है ना, पैसा लेके आएगा, तो he demanded $350 and she said no, we're not going to pay $350, we've got another pandit। So, but basically after the confrontation it ended up that they paid $25.25, which is $50.50। हाँ, वो एक रीति है हमारे कि बंधा नहीं देते, थोड़ा चांदी भी देते 25 इसका क्यों ये है वजह? 5 सेंट जब निकल जाए मार्केट में सब क्या करेंगे? नहीं तो डोला भी देते लेकिन थोड़ा फूटी भी देते हैं, ये एक रिचुअल है, राउंड ऑफ करेंगे ना। हाँ, हमारे संगे भी हुआ 10 सेंट्स या $50.25 या जैसे आई थिंक आई एम नॉट श्योर, बट जैसे दिया भी बांटते हैं ना, तो पेयर्स में दे सेड यू शुडंट हैव इन पेयर्स, दो नहीं ना, ठीक है, बिकॉज पूजा में किसी दिवाली में तो बहुत सारे नहीं, जैसे अगर कुछ बांटते हैं, जैसे अगरबत्ती भी डालते हैं या कैंडल्स भी बांटते हैं, एक्चुअली क्या होता है जो एनर्जी होता है इट हैज टू पास ऑन, तो समहाउ दे व्हेन दे आर पेयर्ड और समथिंग दे न्यूट्रलाइज हो जाता है। ओके, ये मैंने सुना है बट आई डोंट नो व्हाई, एनर्जी हैज टू पास थ्रू, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह से शायद मैं भी आई एम नॉट श्योर, बट जो चेंज है, लूज चेंज है, ऑलवेज डोंट गिव दैट bandha figure. You always give loose changes for. Could be. So there you go. There was an experience that was shared in the chat room. Though आपके भी कुछ ऐसे experience हुए होंगे लाइफ में पंडित के साथ, I'd like you guys, if you want to share, and I will share my experience. हमारे गांव में एक पंडित थे, very well known, शायद उसके फैमिली के इजाज़त से उसका नाम लेंगे, उसका नाम दुर्गा पंडित था। वो अमेरिका चला गया था, हमारे गांव में जितू स्टेट में। वो बहुत ही मिलनसार और बहुत ही सहायता करते थे। नो, ही स्वर्गवासी हो गए। एंड ही यूज्ड टू डू थिंग्स समटाइम्स, जैसे किसी को ढारते हैं, फूकते हैं, पीरी हो जाता है या कुछ किसी तरह का प्रकोप हो जाता है, एंड ही यूज्ड टू नॉट चार्ज, ही यूज्ड टू से कि जो भी हो दे दो, जो भी आपके शक्ति में। एंड ही वाज अ फुल टाइम पंडित, उसका और कोई प्रोफेशन नहीं था, कारपेंटर या प्लम्बर या ब्रिकलेयर, एंड वो हमारे गांव के थे, एंड ही यूज्ड टू डू सम वंडरफुल वर्क। बहुत लोगों को कुछ का भूत प्रेत का प्रकोप हो जाता था, या दे यूज्ड टू बी इल, या कुछ साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम होते, नॉन मेडिकल स्पिरिचुअल प्रॉब्लम, बिकॉज नॉट अ डॉक्टर ना, तो एंड वो पीरी झाड़ते थे, किसी को और कुछ प्रॉब्लम रहता था, एंड ही यूज्ड टू रियली हैव रिजल्ट्स। मैंने आँख से देखा, I don't understand how it works, वो तो faith का बात है ना, and he did a lot of work and he never had a set fee। हर दम बोलता था जो भी दिल में आए दे दो। पीपल डिमांड करते थे कि भाई नहीं आपने ये किया है कर दो ना, कई लोग 2 बजे सवेरे उसके घरे जाते थे with certain problems because something happened, you know, like एक था एक आदमी का लड़का का कुछ बोलते नहीं है, कुछ भूत प्रेत पकड़ लिया था, hallucinate कर रहा था, sweat कर रहा था, doctor said there was no infection, nothing wrong, no medical organic disease, and they arrived at his house, he opened his house, उसको कुछ मंत्र किया और झाड़ फूक किया, the guy got well। पर्सनल एक्सपीरियंस। जैसे आप बोलते हैं गांव में, ऐसे हमारे समय में जब हम गांव पे तो ऐसे बहुत पंडित थे गांव में, ठीक है, और फिर दी अदर साइड हम देखते तो वो टाइम पंडितों का बहुत खर्च भी नहीं होता था ना, एंड वी कैन अंडरस्टैंड दैट। बिल्कुल। जैसे मेरा एक आई वांट टू शेयर समथिंग, जैसे जब किसी के घर पर कोई का देहांत हो जाता है ना, तो हम देखते हैं कि जो घर वाला है उनके ऊपर the pressure is there, depression, दुख तो एक फिर इतना भारी खर्च होता है, खाली पंडितों का और भी खर्च होता है, लोग आते हैं, चिल्लाते हैं, लोग आते हैं, लोग हेल्प भी करते हैं, लेकिन एक चीज हम देखते हैं कि निगोना जो होता है, एवरीवन वांट्स डिमांड दैट ग्रोग। अगर 13 डेज का बैठक है तो 13 रोज जो घर वाले हैं, हम अवश्य से कभी जाते हैं फिजी में, और जब हम फिजी में थे भी देखते थे कि वो 13 रोज जो आदमी के एक जगाना है, वो घर वालों को जो जगना है 12-1 बजे तक, और फिर कुछ लोग आ जाते हैं नहाना पीने के लिए, सिर्फ वही आते हैं नहाना, और फिर ऊपर से जो पंडित का फीचर क्रियाक्रम जो होता है, पिंडदान जो होता है, दिस इज नॉट चीप। बिल्कुल ना, तो आई थिंक हमारा जो सोसाइटी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम भी अपना रोल
वहाँ पर निभाएं कि जो घर में प्रॉब्लम है, जो देहांत हुआ है किसी का, हम उसको सपोर्ट करें, हम उसको किसी तरह से फाइनेंशियली हेल्प करें, या ऐसा ना करें कि घर पर जाकर किसी के बैठ कर नवा पिए और उसका वक्त बर्बाद करें, उन्हें भी हम सोने दें। और पंडितों का भी ये कर्तव्य होता है कि हेल्प दिस पीपल, बिकॉज ऐसे समय में अगर हम किसी को नहीं हेल्प करेंगे तो कब करेंगे? तो हमारी इंसानियत कहाँ रहती है, हमारी पंडिती कहाँ रहती है? आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव सीन दिस इन सोसाइटी जहाँ पर ऐसा होता है, और मुझे इससे बहुत नाराज़ी है। I'm very angry with these things because I don't think that our society should reflect this thing. They should not support it. अच्छा नहीं लगता है। नहीं बिल्कुल, देखा जाए मेरा पॉइंट है। नहीं बिल्कुल, और देखा जाए सिर्फ ये नहीं है, नहीं एक तो ये है जो लोग आते हैं बैठते हैं और फिर हमेशा ये देरी तक ही बैठते हैं ना, एक सुबह 1 बजे या 2 बजे घर पर जाते हैं, भजन भाव होता है। तो ये जो भजन भाव का कार्यक्रम है ना, ये होना चाहिए, इट्स इम्पोर्टेंट जरूर, पर उसमें क्या है कि ना कि लिमिट होना चाहिए। चलो भाई 10-11 बजे बस अपना घर। मेरा एक नाराज़गी की बात है, जब मैं बहुत सहमत हूँ मोदी के पॉइंट से, कि मैं ये सिडनी में देखा हूँ कि कभी कभी कार्यक्रम पूजा भजन कीर्तन हो जाता है, बाद में इस विंटर में बीनी पहन के कुछ 10-12 जवान लोग पीछे से घुसते हैं, कुछ हमारे फैमिली में भी है, सिर्फ नोना पीने के लिए। वो भजन में दे डोंट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मल पार्ट, कि आकर बैठ गए भाई यहाँ कुछ मजीरा बजा दिया या यू नो बी पार्ट ऑफ द ग्रुप। वो बाद में अंधेरे में पीछे से या बीनी पहन के आते बैठ जाते हैं, बोल के भाई यहाँ 10 लोग से 20 कैसे हो गए? ये मैंने आंखों देखा हाल है। तो हम ये कहना चाहते हैं जितने व्यूअर्स हैं यहाँ पर, ये जो हम यहाँ कह रहे हैं, अगर आप ऐसे कर रहे हो तो यू शुड स्टॉप इट। और जितने लोग सुन रहे हैं, किसी को देखते हैं ऐसे करने को, वी शुड स्टॉप देम एज वेल। आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से संस्था, हमारी जो सोसाइटी है इनका बढ़ती होगी। और अगर हम ये काम करते रहें तो वी आर पुटिंग आवर ओन सोसाइटी डाउन, वी नॉट हेल्पिंग एनीवन। तो आई थिंक व्यूअर्स जो है वहाँ पर, आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक दिस स्टांस, और इनको हम रोकें। कड़वी बात बट सच बात। बिल्कुल। And your view? My view basically is very simple. I mean, as I said before, कि अगर you know if you do call a pandit, you know, अगर आप दान दे रहे तो हमेशा ये ज़हन में रखिएगा कि कि he's a representative of God. No, आपकी जितनी मर्जी है उतने दो, पर इतने भी पैसे का मत दो कि वो आप अब्यूज कर रहे हैं सिस्टम। अपमान नहीं होना चाहिए, कम ना दो ना ढेर, ना अपना दिल से दो। जी हाँ। और ये भी है कि ये जो पंडित लोग जो सेट राइट कहते हैं ना कि अगर मैं ये करूँगा तो नहीं करूँगा, अगर मैं शादी करा रहा हूँ तो मुझे $500 चाहिए एक दिन के लिए, और या अगर 3 रोज का काम है या किसी का ध्यान होता है तो मेरा मिनिमम चार्ज $2,000 फॉर द होल 13 डेज। दिसंबर पीरियड है फिर। हाँ, तो ये सब गलत है, ये सब होना बिल्कुल नहीं चाहिए। जरूर। Then we go back to Moji's point कि रेगुलेशन होना चाहिए, इसी तरह से होएगा ना। इम्पोर्टेंट है। नहीं, जैसे मैंने भी पहले भी बोला डॉक, आई मीन दिस यू आर रिप्रेजेंटेटिव ना, यू रिप्रेजेंटिंग समबडी, आपके पास ज्ञान है, यू नो, people call you, I mean you representing, you know, as a you're a figure for our community, so you shouldn't do that. और जैसे स्टेटस होता है, जैसे जीत आपने बोला है कि जरूर जैसे आपने बोला है सही है, और यहाँ पर तो डिस्कशन हो रहा है। वैसे अगर हम देखें तो किसी को पंडित जो है, जो ब्राह्मण है, उनका निंदा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, ये तो बहुत गलत है। ये हमारे सोसाइटी के खिलाफ है कि हम किसी पंडित के या ब्राह्मण का पर्सनली निंदा करें कि वो पंडित ऐसा है वैसा, ये पाप हमें लगता है। लेकिन ये तो एक फोरम है, डिस्कशन है, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम किसी के निंदा नहीं करते हैं, लेकिन वी डूइंग अ कंस्ट्रक्टिव यू नो डिस्कशन, कि जहाँ से इसका जो फ़ायदा है ये सोसाइटी को, हमारी सोसाइटी का हो, सबको इसी से फ़ायदा ले, और सभी इससे मिलकर और हम मिलजुल कर अगर काम करेंगे तो फ्यूचर में सबके हिस्सा अच्छा रहेगा, लाभ होगा। Yes, exactly. Well, True. my thought on the pandits are, you know, I've seen some and I have enjoyed some pandits. As a kid, I've seen a pandit, you know, doing the shadi of my brother, and he was actually standing up. जब बाहर घूमते हैं, my brother was getting married, तो वो केला लगा था ना ऊपर, वो केला खींच के खा ली। पूजा किसकी होती है? पूजा गणेश जी की होती है, वो केला छिल के खाने लगा। So there are some experiences of pandits that I have seen, you know, along the trend. कुछ पंडित ऐसे होते हैं कि वो डिमांड करते हैं, क्योंकि वो बहुत देर तक बैठ नहीं पाते हैं ना नीचे स्थान पर बैठने के लिए,
they are not used to it because बाहर देश में कभी-कभी ठंड होता है ना, outside world it's cold. तो ये सब चीज़ें कुछ पंडित की तरफ से मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप बाहर देश में फिर विंटर कंट्री, विंटर के मौसम में पूजा इत्यादि करवा रहे हैं, तो वो साधन पंडित के लिए आप प्रिपेयर करके रखिए. जैसे पंडित are holy people, जो भी है किसी तरह से आपने सुना है, you know, if you hiring a पंडित for some reason, जो भी कितने आप देते हैं, तो these are few things जो आपको जान लेना ज़रूरी है. या तो फिर ध्यान रखिए, छोटे छोटे बात ऐसे होते हैं कि आप ये जब वो सर्विस आपको प्रदान कर रहे हैं तो उसके बाद में आप पंडित से पूछ सकते हैं और ज्ञान ले सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स पंडित आर फुल ऑफ नॉलेज. दोज अच्छी तरह से जो वेजिटेरियन पंडित यू नॉर्मली फाइंड शांत वातावरण के होते हैं, शांत दिमाग के होते हैं. नॉर्मली दोज आर वेजिटेरियंस नेचुरली आर कूल माइंडेड पीपल, because I think chemically it's proven if you are a non-veg than a veg, then it's overheat. Aggressiveness level is totally different. तो अगर आपकी डाइट में ज़्यादा मीट है तो you'll know it's more aggressive. सही बात कर रहा हूँ. एक बात उस पे है, जैसे आप जानवर लोग को देख लो, जो जानवर ग्रास खाते हैं वो अग्रेसिव नहीं है. गाय के देख लो, बकरी के देख लो, और शेर और कुत्ता के देख लो. तो अगर हम शेर की तरह रहेंगे तो will be aggressive. So those पंडित्स that are practicing पंडित्स, अगर आप पंडित नहीं है, साइंटिस्ट नहीं है, तो नॉलेज नहीं है. This may be some sort of knowledge coming towards you कि अगर आप नॉन वेज है तो उस पे आप जरा ध्यान डालें. तो क्योंकि the meat stays into your system. I don't know. I haven't heard of any pandit. 21 days basically. I don't know if any pandits. Chemically it probably does, but by the time it's digested, probably 3 to 5 days. 3 to 5 days. So unless you constipate, कब्ज हो गया तो पपीता खा गया. वैसे बहुत ब्राह्मण है जो they are vegetarian. Oh, the fully vegetarian. Most of the Brahmins are vegetarians. Pandits are vegetarian these days. लोगों ने ये कहा है चैट रूम में, कुछ पंडित बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं ना, क्योंकि some पंडित are short tempered because उस पे जब पूजा करवाते हैं they are involved into it, so they don't want noise. Hey, चुप रहो बोली ना, डांटी लो. It's important कि वो पूजा करवा रहे भाई. और कुछ पंडित ऐसे बहन जी अच्छी तरह से छोड़िए, अच्छी तरह से डोज क्यों कर रहे हो ना, they speak out. So they are aggressive in a sense कि वो they want to do a good puja. Those are the pandits that बोला तो बड़ा खुड़स पंडित है, but they are doing the job. है ना. बच्चे अगर शरारत कर दे या तो खेल कूद कर रहे हैं, अच्छी तरह से ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उल्टा हाथ से घुमा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं. On the other side, पंडित को जिसे आप बोलते हैं शांत रहना चाहिए. ठंडे दिमाग से बच्चों को अच्छी तरह से प्यार से बताए दे. बच्चों ना फेसबुक ऑफ कर दो, बच्चे प्यार से बोलते हैं टर्न द ब्लडी फेसबुक, इसे बोले वो अग्रेसिव तो वो पैराडॉक्सिकल हो जाता है कि इसको शांत होना चाहिए. बच्चों को डांटेंगे वो नेक्स्ट टाइम नहीं आएंगे पूजा में. उसको वैसे भी कभी जबरदस्ती खींच के लाना पड़ता है बच्चों को बैठे के लिए ना, कि पूजा है बैठो चुपे यहाँ. वैसे जब हम देख लेते हैं किसी का बर्ताव, हम जब देखते हैं एक व्यक्ति जब बात करता है या एक सेकंड हम उसके साथ में बात करते हैं, तो उसका जो शीलतापन है हम जान जाते हैं सेम टाइम. तो अगर आपके बानी से अगर वैसे शब्द निकलता है, गुस्से से निकलता है, तो दैट मीन्स यू आर नॉट एट पीस इनसाइड. कैसा भी पंडित है, उनका जो बर्ताव है, जो बात है, जो मुंह से निकलता है, जिब्बा से निकलता है, वो सॉफ्ट होना चाहिए. बहुत शांत, वेरी पीस एंड क्वाइट. मानसिक संतुलन अच्छा होना चाहिए, शांत. थोड़ा हेवी संस्कृत होने लगा. संतुलन, वाणी जो लोग नहीं जाने, मतलब वाणी मीन्स आपका स्पीच क्या बोल रहे हैं. संतुलन मीन्स योर पर्सनालिटी, योर माइंड सेट. अच्छा है, इम्प्रूव हो रहा हमारा हिंदी. So yes, we'll come back with a thought and close this program, ladies and gentlemen. बंद करेंगे and we'll final share thoughts, a thought and we'll play a song and we'll come back and see what's happening. Thank you. लाएगा जरूर Fiji Indian TV, Fiji Indian TV. Fiji Indian TV, providing entertainment for the Fiji Indians around the globe. Every Sunday from 1 p.m. www.fijiindiantv.com. Be there. Well guys, we have come towards the end of our program. और इस प्रोग्राम को आप सुन रहे हैं. आज हमने बहुत सारे अच्छे बात, कुछ बुरे बात तो नहीं कहे मेरे हिसाब से पंडितों के बारे में. And those good पंडित आते हैं and not so up to scratch 100% पंडित. Please,
मैसेजेस टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट. यस. सफर अच्छा था हमारा. कौन सी ग्रेन ऑफ सॉल्ट है? उसका मतलब है कि डोंट टेक इट टू सीरियसली. कभी कि हम कुछ बोलते हैं, be philosophical about it. I mean, we highlighted few things basically. Some of the issues we're facing in our society. I think some of the issues the public is facing. पंडित लोग सुन रहे हैं तो उनके लिए छोटी सी जानकारी है, और जनता के लिए भी काफी इन्फॉर्मेशन. मीठी कड़वे फल संगे खाएंगे. गिवन टुडे कि अगर आप 500 दे रहे, भाई क्यों 500 दे रहे हैं, दूसरे वाले पे महंगा पड़ेगा तो ज्यादा पड़ेगा ना. वो बात है. एक कंडीशन थोड़ा बन जाता है ना कि भाई वो स्टैंडर्ड है, वो हमको देते, आपको भी देना चाहिए. हो सकता है भाव बिगाड़ते हैं. बिल्कुल. And basically people should not demand, ना. Basically that's the bottom line is Pandit should not मुंह खोल के मांगो. Yeah, बिल्कुल. Because people do understand. People in Switzerland, they live in Australia, they know what's आजकल मॉडर्न जमाना हो गया. पंडित पूछे तुम्हारा एड्रेस कौन चाहिए, जल्दी से गूगल कर ली, देखिए बड़ा बिल्डिंग है, वही किताब से पढ़ा चाहिए. I'm out of the cycle पर आऊँ. I like that, Param. You like that? Uncle Google में मारे at the same time आ जाना. सोचे क्या आइडिया दिस पर ना. Well, this is a good thought process, guys. Let's close in your thoughts and closing thoughts before we finish the program. Well, you're watching episode 53 और हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा आज. Final thought ये है कि एक question है, when is the youngest age एक पंडितेई शुरू कर सकता है? Maybe we can research and come back. I think we've wrapped up everything. So just a question to finish off. Should they be 14 or 16 or 18? ये हमारा रीति रिवाज के अनुसार. When do you start? 18? My horse wasn't Samalo till probably 25, 26, so I don't know. घोड़ा तुझा horse संभालने I don't think there should be age limit. एक छोटा बच्चा भी, बालक भी अगर छोटा से पंडित कर ले तो उसके एनर्जी इधर-उधर नहीं जाएगा ना. He will become a pure पंडित. जितना हाल ही लाइफ में अगर कोई कुछ स्टार्ट कर देता है, अब जैसे विवेकानंद को देख लो, ऐसा क्लासिक एग्जांपल. वो जितना हाल ही आप अपना एनर्जी को वहाँ पर कंसंट्रेट कर दोगे तो फिर देन यू डोंट गेट जितने बाद में ही करेंगे. विवेकानंद जो हिस्टोरिकल श्री विवेकानंद. He was an enlightened being, ना. जिसका नाम पे he was a realized person. So yeah. तो ये पंडितों के लिए है. Maybe they can give us feedback कि मान लो ऑस्ट्रेलिया में when is the youngest कि एक पंडित कार्रवाई कर सकता है, हवन कर सकता है, पूजन, शादी कर सकता है, अंतिम संस्कार के जो मंत्र कर सकता है ना. I would say about, I haven't seen very many young pandits. Send him to a ritual place जहाँ जैसे all our pandits are over 20. What is it sect that जहाँ पर वो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं? आश्रम, बुद्धा or something? नहीं. Please. यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया में है, यहाँ पर जो संस्था है वो they actually train पंडित. So yeah, they do. मेरे एक मुलाकात पंडित से हुआ था. ही एक्चुअली पंडित का नाम तो नहीं याद है, लेकिन वो जो एसोसिएशन है, ही सेड ही इज द हेड ऑफ द एसोसिएशन. इत्तेफाक से उनसे मुलाकात हो गई काम पर, और उसने कहा कि वी एक्चुअली ट्रेन पंडित. मुझे उसका इंटरव्यू करना था लेकिन किसी कारण नहीं हुआ. आई कुडंट एक्चुअली गेट इन कांटेक्ट विद हिम. लेकिन उसने मुझे कहा कि इन ऑस्ट्रेलिया अगर कोई पंडित करना चाहता है तो ही इज द हेड. ही एक्चुअली टीचेस द ओल्ड संस्कृत भी सिखाते हैं. There are schools where you can go and learn Sanskrit. There are ways and avenues to do it. It's not hard. If people do actually want to go in, I mean, most people go to India because in Rishikesh to become a pandit. Yeah, in Rishikesh there is the ashrams and all that they teach. In India is huge. India is huge. Yeah, India is huge. We don't have those facilities in Fiji. Fiji में तो नहीं है. Thanks for that bit of information. Yeah. So there is a center where you can. Becoming one. Center for, I didn't know that they actually train. I didn't even know that. Yeah, okay. Well guys, it has been a wonderful forum, and I hope that some of the pandits that are watching this program somehow, if you want to comment, please do go into Fiji Indian TV group on Facebook. उसमें कमेंट कर सकते हैं, या तो फिर आप हमें खत भेज सकते हैं. हमारा एड्रेस है 467 स्कॉट स्ट्रीट, लिवरपूल, हियर इन सिडनी 2170. निसातवल सिडनी पोस्ट कोड है. हाँ, मॉडर्न ज़माने में ईमेल कर सकते हैं fiji.indiantv@hotmail.com. देख सकते हैं कि हम कहाँ हैं. उसके उपरांत आप हमें लेटर भेज सकते हैं.
तो yes guys, so it has been a good सफर today. Yes. परम जी व्यूअर्स से हम कहना चाहते हैं, इम्पोर्टेंट है कि थैंक्स फॉर वाचिंग, और आई थिंक जितने पुरोहित लोग भी देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, हम आपको धन्यवाद भी देना चाहते हैं. अगर आपका कोई व्यूज़ है तो हम फीजी टीवी पर आप हमें या कांटेक्ट कर सकते हैं, या चैट रूम पर, या किसी ही वक्त से. लेकिन ये ज़रूरी है कि हम एक सोसाइटी मिलकर एक साथ में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, आगे बढ़े. और आई थिंक मेरा दर्ख्वास्त आप पैनल लोग से है कि अगर हो सके तो हम लोग जो सोसाइटी है, जो यहाँ का जो प्रतिनिधि सभा है, we try to consult them and see what their views are. ये जो वो भी इनको देखें और उनका क्या विचार है, उनसे ये क्या स्टांस ले सकते हैं, how can they help the society and the Brahmins as well. I think it's very important कि we actually take that stance so that we can actually help everyone. I think we should invite one of those members of the I think people are concerned कि हम उनके cross examine ना करें. I think that's the question. Probably. No, the idea is to just ask them question to enlighten and to broaden the knowledge of our views. प्रकाश डाले ना, बिल्कुल. just to educational रहेगा. जरूर. There are some people, but I suppose they're probably busy, na? When we contact them, आएंगे. But anyway, those who do want to come, please come forward and let's spread the love of knowledge. Yes. And those pandits out there, please, don't move forward. भूल चूक हो गया, माफ कर देना, इतराज मत मानना. It's just 500 I think is quite heavy. I don't know how much time it takes to do a puja, or may take पड़े. Sure. But certainly 500 is a lot of money. Some people can't afford it. Especially it's tax free. Yeah. Tax free की तो बात छोड़ो, लेकिन some people can't afford it, ना? GST नहीं लगता है. Very hard. It's very hard. शायद एक हफ्ते में कभी कोई लोग शायद 500 बनाते होंगे after tax. Yes, true. So much pain and things. Well, guys, I think on the other side, there are some good pandits out there. There are pandits there that do good spiritual work and do pass the messages, and that are kadak इंसान होते हैं, अच्छी तरह से भेदभाव की तरह से पूजा करवाते हैं. You probably have experienced some of them, and you as well. So there are some pandits also we meet in limelight. Modern pandits होते हैं जब हम स्टेज में मिलते हैं और संस्था में जहाँ पे जाते हैं मिलते हैं. We know one of them is quite active over there. तो पूजा भी करवाते हैं और अपना और भी कुछ काम काज संभालते हैं. तो it's wonderful to see people are doing the right way is the most important thing, I suppose. Generally हम देखते हैं हमारे न्यू साउथ वेल्स सिडनी में most of the पंडित काफी मिलनसार रहे. They are sociable, they understand society. वो people का पीड़ा समझते हैं, नीड समझते हैं. I think they are not 100% demanding. Most of them काफी flexible है. जैसे एक पॉइंट और है डॉक्टर जी, जी तो परम, आजकल हम देखते हैं कि जो पंडित आते हैं घर पर, द गुड थिंग अबाउट इज दैट वो जितने ही मंत्र बोलते हैं उसका ट्रांसलेशन करते हैं, उनके तोड़ कर समझाते हैं. इट इज आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. हमारे आदमी समझेगा नहीं, हमारे यंग जनरेशन जैसे वो नहीं समझते हैं, और दे एक्चुअली ब्रिंग साइंस समटाइम्स टू एक्चुअली एक्सप्लेन थिंग्स. बिकॉज अगर हिंदुइज्म जो ग्रंथ है उसको देखे, इट्स अ साइंस ऑफ रियलाइजेशन इटसेल्फ. बड़ा साइंस है जो अभी के जो हमारे साइंस जो खोज रही है, इट्स ऑलरेडी बीन टोल्ड लॉन्ग टाइम अगो. तो कुछ ब्राह्मण पुरोहित लोग ऐसे करते हैं, दे ट्राई टू ब्रिंग टुगेदर. बिकॉज आजकल के जो नया जनरेशन है, दे ब्रिंग एवरीथिंग टुवर्ड्स साइंस and then try to understand religion. तो जब पंडित लोग इनको तोड़ कर समझाते हैं, when they translate things, तो it makes a lot of sense. तो जो यंग जनरेशन होता है, या इट मेक्स सेंस नाउ. अगर मंत्र बोल देते हैं तो मंत्र को हम बड़े लोग नहीं समझते हैं, बुजुर्ग लोग नहीं समझते, तो वो बहुत अच्छा लगता है जो पंडित तोड़ के बताता है उनको. इंग्लिश में कुछ भी बोलता है, हिंदी में भी बताता है, लेकिन तोड़ फोड़ के जब समझाता है तो जो बच्चे लोग दे टेक इंटरेस्ट, वो सुनना चाहते हैं. क्योंकि and a lot of Brahmins actually do that. I'm very very happy with that. That's good. अच्छी बात है. पर एक इसमें थोड़ा एक प्रॉब्लम है. मैं कभी देखता हूँ पंडित्स एक्चुअली नॉट वेल वर्स्ड इन साइंस. उसका इंटरप्रिटेशन साइंटिफिक होता है लेकिन सूडो साइंटिफिक होता है. कभी वो they don't really understand. तो out of respect I don't say anything. बोलता अच्छा चल गया ना. कभी हम प्राइवेटली इसको जैसे बात कर लें कि भाई ऐसा नहीं है साइंस में, मान लो बैक्टीरिया क्या है, डिजीज कैसे प्रोड्यूस होता है, माइक्रोस्कोप कब इन्वेंट हुआ है, ब्ला ब्ला. थोड़ा
म्यूचुअल वो है ना, तो 99% they are good, but 1% कभी-कभी they themselves do not understand the science that they are trying to interpret. तो वो थोड़ा केयरफुल होना चाहिए. इंटरनेट में चेक कर लो first, but it is a good thing कि they are putting it कि जो young generation है they can connect. Connectivity society में बहुत important है, जो लिंक होता है ना. Well, आजकल के जो जमाना है काफी family and social we are quite modern in this world, and you know there's a little tips for some pundits as well. If you are you know, आजकल आपके पास Facebook नहीं भी on Facebook, तो you can pass the knowledge on Facebook. Actually, it's a good place to you know tap into that section and give your knowledge to people. चाहे किसी तरह का भी knowledge हो, one knowledge reaches a person is good rather than no knowledge, you know. Sharing, and of course you know आजकल iPad का ज़माना आ गया. You can put your mantra there, or you can put the list of requirements. You know, if you're sending to someone, आप email कर सकते हैं, text कर सकते हैं कि भाई ये पूजा का सामान है. और you know some people know connections जहाँ पर पूजा का सामान, जैसे कि कुछ लोग दौड़ते हैं केले के पत्ते के लिए, आम के पत्ते के लिए, कुछ लोग दौड़ते हैं उसके घर ही मिलेगा, उसके घर ही मिलेगा. So all this broad knowledge जो होता है पंडित के पास एक लिस्ट में अगर हो तो अच्छा हो, या भैया ये लिस्ट में सब लिखा है, फटाफट तैयार कर लो. अब आजकल तो वो मिलता है ना, पूजा पैक्स मिलता है. पूजा पैक्स में तो आम की पत्ती नहीं रही ना. नहीं, बट पीपल नो ना कि आम की पत्ती चाहिए, फ्लावर्स चाहिए. शादी था, पंडित जी मुझको टेक्स्ट किया. अच्छा, सामग्री. I was very impressed. पूरा अभी तक मेरा बोला कि गया है, ये है, यस ओके, ये चाहिए, एक भी चीज मिस नहीं हुआ. खिलक पत्ती मिस हुआ, अभी नाना घरे में लिखा था. I haven't seen anything on Facebook जहाँ पर कोई साइट हो या तो कोई पंडित का स्पेसिफिक साइट हो जो वो बताता है कि ये चीज के लिए ये सामान. फेसबुक में शायद नहीं होगा, लेकिन इंटरनेट में है. सोशल मीडिया, जैसे कि मैंने पहले कहा कि there is a area they can tap in and you know pass the knowledge on. No, it's a good place. It's not a bad place. You know, some people misuse it, but it depends how you use it. Quick question. जब ये पूजा शादी वगैरह जब फिजी इंडिया में होती है और इंडिया में होती है, for the pandits, is there any difference कि सब across the board same सामग्री? It should be the same. It's why say it should be same, but it's different because of the geographical location. अब ऐसा कुछ चीज है जो नहीं मिलता, वो हमें फिजी में नहीं मिलता या यहाँ पर नहीं मिलता, इंडिया में मिलता है, तो we replace things or we actually don't use things. Suitable things से replace कर देते हैं. ये तो you know what you can actually provide or actually get in that area ना. जैसे कि धूप ग्रास वो यूज करते हैं instead of जरूर something ना, जरूर use for something. अब जब कुछ नहीं होता है तो उतने से हम काम चलाते हैं जितना होता है, तो उसमें अंतर है जगह जगह पर, and that variation cannot be fulfilled. वो तो हमारे समझने का ऊपर है. I think. Well, all Pandits out there, kudos to you guys doing a hard job, and in a society like Australia and America and New Zealand, जहाँ changing society, you are still आपको अपने धर्म है, संस्कृति है, सभ्यता जो भी आप कर रहे हैं, यू आर डूइंग इट बिकॉज़ यू हैव टू फाइंड पंडित्स ओवर हियर ओवरसीज. फिजी में तो बहुत सारे हैं एंड यू डूइंग अ गुड जॉब. हाँ, हालांकि कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको जो मांग है वो कम कर लीजिए. $100 आई डोंट नो, आई हैवंट हर्ड, आप शायद सुने होंगे $500 बिट अमाउंट, तो यू नो काट के रखिए ना, काट के रखिए जरूर, सो पीपल कैन एंजॉय. यू नो, दैट्स इट फॉर अस गाइस. Yep. And we should leave you with a good thought, and hopefully we haven't upset anyone. And hair उल्टा कुछ बाल नहीं झाड़ दिया हो, hopefully. जरूर apologies अगर. No, the thing is because we hear a lot of things, and if you don't ask, you won't know. अगर किसी इंसान के पास नॉलेज है पंडित के बारे में, तो जैसे किसी ने फरमाया कि पंडित लोग क्यों जांच करते इतना ज़्यादा. अरे भाई, कुछ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है, नेगेटिव क्रिटिसिज्म है, घर नहीं है, मॉर्गेज पे है, या तो काफ़ी सामान होता ना देखने के लिए, लेकिन we don't know, no, it's their life, so we try to answer the question, and I hope we have answered some of the questions. Sure. I think there should be a standard, और एक rules होना चाहिए, regulations होना चाहिए, is important, and maybe a registration. I think they have a registration. I think Pandits are registered. Next time they can Pandit Param Sivan IC ... accreditation. I think Pandit Elakam Sikak Pri doc. I'll be the auditor. The auditor. ठीक लगे. सही मंत्र पढ़ो. We can learn anything. Yes. Anyway, Nisa Mode and Shabakher. Yeah, I will see you next week. Thank you very much. Nice to have you in the program again. Thank you. आपको जैसे मौका मिलता, जरूर, जैसे तुम्हें मौका मिले तुम इधर आते रहो, हम लोग के संग प्रेम भाव बढ़ाते रहो. Thank you guys. Thanks panel. No problem.